Hello, good evening. Am I audible online? Okay, thank you. So today we shall be starting with the last part of our mains master program, that is art and culture. And I don't know last क्यों रख दिया थोड़ा यहाँ तक आते थोड़ा सा आदमी पुराना हो जाता है है ना? तो बट आई नो देखो मैं सोच रहा था आते शुरू में अभी जस्ट आते आते कि विल स्टूडेंट्स कम टुडे और नॉट बिकॉज हिस्ट्री सब्जेक्ट है एंड सम पीपल थिंक दैट इट इज बोरिंग. But I know it is not boring. So all of you have come on the day of Valentine. So that proves कि भाई सब्जेक्ट से प्यार तो है. Anyway, so let us begin. What I will be doing, देखो, it is practically impossible to teach entire ancient medieval history and culture in 5-6 lectures. It is not even expected and not even required for the exam. हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा. What? Yes, वॉल्यूम तेज करूं तो आपको किसी को बुलाना पड़ेगा, है ना? कोई है यहाँ पे वीडियोग्राफी टीम से? प्लीज आ जाइए. स्पीकर लगा देते. ठीक है. इतना छोटा आवाज है मेरा. हाँ मत ठीक है चलो कोई बात नहीं. थोड़ा आवाज आ जाएगा. ठीक है. तो अजय सर प्लीज आ जाएंगे 2 मिनट के लिए. ओके. सो द अप्रोच इज लिटिल बिट डिफरेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे पहले 1 घंटा तो आई विल टेल यू व्हाट दिस कल्चर इज अबाउट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट. यहाँ पे ना उनको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना है. इतने इतने दूर से उन्होंने सुन लिया वॉल्यूम के. तो तो उनको सुनाई देता है आवाज. अब आवाज आ रही है? पक्का आ रही है? मुझे तो कुछ फर्क नहीं लग रहा है ना? ठीक है देखो आप. ठीक. अब मैं धीरे से बात करूं. अब आ रही है आवाज? ठीक है. ओके चलो थैंक यू. सो देखो अपना अप्रोच क्या होगा. फर्स्ट, on the first day, at least for 1 hour, I want to help you understand the change in the approach that is required from prelims toward mains for culture specifically, not for generic answer writing, only for culture. क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अंतर है. एंड दैट इज वाई मेनी पीपल फील कि मेंस में कल्चर बहुत मुश्किल होता है. मुश्किल नहीं होता है, अलग होता है. इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स लिटिल डिफरेंट एंड वंस यू हैव अ गुड पर्सपेक्टिव थिंग्स आर रिजॉल्व वेरी इजीली. दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंडली आई यूज टू टेक दिस मॉड्यूल earlier in a very thematic manner. I used to have 5 lectures. एक दिन रिलीजन, एक दिन आई यूज टू टेक विजुअल आर्ट्स वगैरह ऐसे चलते थे, एजुकेशन वगैरह. But this time I'm going to change it from this batch onwards. I want to shift towards very classical old school method of chronological approach. We'll go era by era और उस era के इशू हम देख लेंगे. तो उसका बस एक ये है कि you may have to sit little bit longer, including Sunday. तो ये होगा कि rather than 5 lectures allotted to me, maybe I will end up taking 6 or 7 lectures. 6 lectures तो लूंगा. तो संडे की छुट्टी फिर नहीं होगी, या आपका नुकसान होगा या फायदा, आप देखो. है ना? That is another thing. Now come back to approach. First of understand how is culture for mains is different from culture for prelims. If you look at the mains GS1 syllabus, they have mentioned only one single line. What they have mentioned is salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. इसमें देखने लायक चीजें 2-3 है. What it says and what it does not say, both of them are very instructive. जैसे आप जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो, in prelims or whenever we teach in GS foundation class also, let us take Mauryan Empire, Gupta Empire, Mughal Empire, etc. We start with the political story. Then we talk about the structure of administration. Then we elaborate upon the economic aspects, agriculture, trade, technology, etc., urbanization, all those aspects. We discuss the social aspects, class, caste, and gender, and other things. Then we talk a little bit about religion and philosophy. And finally, we talk about art and culture. ये हर चैप्टर का टिपिकल स्ट्रक्चर होता है. एनसीईआरटी का भी स्ट्रक्चर वही है. एंड दैट इज जनरली व्हाट वी डू फॉर एनी एंशिएंट medieval इंडिया टेक्स्ट बुक अप्रोच. बट दिस इज गुड फॉर फिल्म्स. दिस इज नॉट गुड फॉर मेंस. In mains, they have not mentioned politics.
They are not even asked a single question on politics in last 12 years. They have not mentioned these parts at all. हो सकता है economic culture society थोड़ा पूछ लिया हो, but that is indirectly asked in some specific different context. I will explain when and how. But by and large, explicit syllabus में politics, administration, economic, society is not in our syllabus. What is in our syllabus? Religion, philosophy, art and culture. Art and culture also includes literature. लिटरेचर सो उन एराज में जैसे कि वैदिक एरा और संगम लिटरेचर वगैरह जहां पे लिटरेचर फॉर्म्स द प्राइमरी बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चन की भाई बताओ वैदिक एरा कैसे इवॉल्व होता है बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर संगम लिटरेचर इज गुड और बैड फॉर पॉलिट इकोनॉमी पूछ लेंगे वो बट दैट इज प्राइमरली अ लिटरेरी स्टडी नॉट हिस्टोरिक स्टडी तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इन द सिलेबस इनको आप समझना जरूरी है बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क यू वोंट अंडरस्टैंड कि रिलीजन में क्या हो रहा है कल्चर में क्या हो रहा है तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको पता नहीं हो पता होना चाहिए and maybe it will be useful to understand it will be some perhaps useful also in some answers as some points no doubt data is going to be useful but by and large the scope of the syllabus and pyqs is clear that we have to focus on only these two. Everything else is as consequence as extension as incidental not as primary thing क्या आपने पहले नोटिस किया था कभी go to the first handout look at the pyqs and show me any question which is political purely economic बस वैदिक एंड संगम पूछेंगे क्योंकि लिटरेरी स्टडीज है ही नहीं सवाल so that is one thing so we have to keep our focus very limited on religion philosophy literature art and culture and through that we have to understand if at all required to the or a through that will be our primary base वैदिक यस वैदिक में पूछा है संगम में पूछा है तो वैदिक एंड संगम ही क्यों पूछा है because to study those era we are dependent only on literature and we need to know the literature वो उसका primary फंडा है similarly they have asked a question in medieval era कि how does the medieval temple sculpture help us to understand medieval society एक बार पूछा है right so the question may be on society but again you arrive at society through culture तो अपनी लेंस जो होगी यहाँ पे फोकस्ड हो that is and that is very clear in syllabus also it's not I am making it out of my own mind based on pyq syllabus में officially mention किया है यार salient aspects of art forms literature architecture बस ठीक है so that is one thing they may ask political social cultural also but indirectly and based on sources of culture that is one secondly ये तो क्लियर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है देयर इज अदर एस्पेक्ट दैट दे हैव मेंशन एक्सप्लिसिटली एंड दैट इज टू मॉडर्न टाइम्स अब ये वाला पार्ट जो है यूपीएससी ने आज तक खोला ही नहीं डू यू स्टडी द पेंटिंग्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डू यू स्टडी राजा भैरवी वर्मा हम नहीं पढ़ते ज्यादा नहीं वो है पता है बट जनरली ना यूपीएससी ने पूछा है ना हमने ठीक से कभी पढ़ा है तो एज फार एज द लास्ट 13 years हिस्ट्री गोes विदाउट एक्सेप्शन यूपीएससी हैज स्टक टू एंशिएंट medieval ओनली ठीक है not a single pyq is on modern indian culture in the culture part and if you look at questions of modern india they are political economic only तो मॉडर्न इंडिया का कल्चर जैसे कि द इमर्जिंग नियो गॉथिक आर्किटेक्चर नहीं पूछा आज तक या फिर मतलब ठीक है पॉइंट है कि देयरफॉर बेस्ड ऑन second thing my second thing is that based on the study of pyqs we will restrict ourselves to ancient medieval we will not go to modern वरना आई हैव टू ऐड 2 more लेक्चर्स और आपका अननेसेसरी बर्डन बढ़ जाएगा आज तक एक बार भी 13 साल में नहीं पूछा ठीक है दैट इज सेकंड थिंग जिस साल पूछेंगे उसके अगले साल पढ़ा दूंगा तो now let us look at this art forms for a moment अगर we have to reconstruct syllabus of art forms what are the constituent elements उसको पहले देख लेते हैं so art forms में generally we have on one hand religion and philosophy then secondly you have visual arts thirdly we have
literary arts, and fourthly, we have performing arts. Now, this kind of classification is very Eurocentric classification, जहाँ पे classical and folk, visual and performing bifurcation किया जाता है, and that framework comes very handy for us to study. Also, we'll use the same framework. Thank you. अब in case of religion and philosophy, what do we have in syllabus? We start from, हम इसमें tribal religion तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? So we start from Harappa. We Harappan religion, which we can glean only from archaeological remains, and we have Vedic religion, which we can glean only from literature. In that we have the old Vedic religion, जिसमें you focus on sacrifices, etc. उसमें भी gods बदलते हुए सब कुछ है. And then we have high level philosophy, that is Upanishads. Afterwards, we have the Buddhism, Jainism, and overall Nastic philosophical schools. Then you come to आपके बाद में क्या आता है उसकी देन विद इन बुद्धिज्म यू विल डिस्कस एवरीथिंग इमर्जेंस से लेके फीचर्स से लेके सब कुछ डिक्लाइन तक आफ्टर दैट व्हाट डू वी हैव गुप्ता एरा में वी हैव रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म सो रादर व्हाट आई वुड से इज पुराणिक हिंदुइज्म उसके फीचर्स उसके इम्पैक्ट उसका कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस सब कुछ देन वी गो टू आचार्यस वेरियस आचार्यस उसमें शंकर है रामानुज है मध्व है वगैरह वगैरह एंड फाइनली वी गो टू भक्तिज्म एंड सूफिज्म and all its constituent elements. These are the main buckets on which questions have been asked, could be asked. Once you go, I just want to map everything ताकि पहले दिन आपके मन में scope clarity हो जाए क्या क्या है अपने syllabus. I always and always prefer religions come first, then everything comes. Why? Because a very simple idea. जो एक in Hindi literature there is a great person who passed away many years ago, रामधारी दिनकर. रामधारी दिनकर है ना रामधारी सिंह दिनकर सो ही हैज सेड इन वन ऑफ हिज बुक्स संस्कृत के 4 अध्याय दैट कला धर्म की दासी होती है कला धर्म की दासी होती नाउ व्हाट डज इट मीन व्हाट इज ट्राइंग टू से इज इफ यू लुक एट आर्किटेक्चर पेंटिंग स्कल्पचर डांस म्यूजिक ड्रामा लिटरेचर ऑल ऑफ दिस आर largely influenced by religion at least in the pre-modern era they are in the service of religion तो अगर आप जब तक रिलीजन का डेवलपमेंट नहीं पढ़ोगे तब तक देर इज नो पॉइंट इन स्टडिंग टेम्पल नो पॉइंट इन स्टडिंग स्तूपा नो पॉइंट इन स्टडिंग एनी लिटरेचर बिकॉज large amount of these things are reflection of religious ideas they are coming as a consequence of development religion evolve हो रही है इसलिए architecture evolve हो रहा है so first always you study religion and then everything else at least in this context then you come to visual arts in visual arts what do we have primarily what we call as architecture, sculpture, and painting. We may have also minor arts, but उसको हम भूल जाते हैं. Minor plastic arts वगैरह होते हैं, they are not required for us, so we'll just remove them. Generally, these are the three major things. Now, if you go to architecture, what is there within architecture? Again, you have specific art forms. You have stupa, you have rock-cut caves, then pillars, temples, mosques, and tombs, and then civic or public architecture. You may also have other things like लैंडस्केपिंग और गार्डन वगैरह वो तो ठीक है एक क्वेश्चन उसमें हम कर लेंगे मुगल एरा में बट those are minor things. Now, all of them within them have their own evolution. For example, if you go to rock cut caves, Barabar cave is the point of the beginning and Kailas cave is the point of the pinnacle. Barabar caves come from Mauryan era, Kailas cave comes from Rashtrakuta era. Exactly 1000 साल का इतिहास है
It is a 1000 years of evolution of the art form of rock cut caves. So can you identify the stages in between? Phase 1 of rock cut, phase 2 of rock cut, phase 3 of rock cut. हर phase के अपने distinct characteristics क्या है? Similarly, you go to stupas. Stupas may be pre-Buddhist, but Buddhism made them great. Then what are the features of stupas in Buddha's era? They're very simple. In Mauryan era, again very simple. The post-Mauryan era is the golden age of stupas. And we have not only the great embellishment, but also regionalization of stupa. We have different type of stupas in central India, different types of stupas in northwest, and different types in southeast. So stupa के अपने अपने phase. Similarly, all of them, temples too, we all know Nagar, Dravid, Vesar, and their own sub-phases. So all of these art forms have their own phases, own characteristics. Questions could be asked on all of them. Similarly, you go to sculpture. Again, sculpture की अपनी variety है, अपने phases है. Sculpture, for example, could be classified based on the raw material. ये बड़ा जरूरी है समझना. Raw material क्या क्या होता है? लकड़ी. You can have wood. You can have metal, some sort of metal or alloy. You can have stone and terracotta. चार अलग materials हैं. All these materials have different processes. अगर stone है, if it is stone sculpture, आप उसको छिन्नी हथौड़ा ले रहे हो, तराश रहे हो. But if it is terracotta, you are molding it. Mold is different from तराशना. ये completely different skill set है. Completely different skill होगा, अलग लोग होंगे. One person cannot do the other thing. In music ऐसे नहीं होता है. Music में एक बार स्वर ज्ञान आ गया आपको. I can play sitar, I can play guitar, I can quickly understand तबला, I can quickly go to harmonium क्योंकि स्वर ज्ञान आ गया है मुझे. एक सुर साधे सब सुर साधे. But that is in music. In case of sculpture, it doesn't happen that way because it is completely आप bronze casting करते हो, terracotta molding करते हो, and लकड़ी को तराशते हो. No, these are completely different. Outcome may look similar to us as consumer of the art form, as the purveyor of art form. But for Kalakar, they are very different. That is one way of categorizing. Other तरीका होता है आपका religious basis पे Hindu sculpture, Buddhist sculpture वगैरह वगैरह. The third way could be chronological. Now chronological में आपके sculpture के अपने मकाम है. And every stage you have different types of sculpture. Can you identify those stages? You have to do that. Likewise, you go to painting, you have main two parts. In the ancient and prehistoric era, we look at the murals. The temple or caves, the diware jo hai, paintings on that. And in the medieval time, we look at miniatures. It could be Mughal miniature, Dakhani miniature, or Rajasthani miniature, or Pahadi miniature. ये चार miniature schools हम generally मानते हैं. But does it mean that in the medieval time there are no murals? बिल्कुल गलत बात है. Murals है. If you go to Kerala, you have Mattancherry Palace, beautiful murals. If you come to Madhya Pradesh, we have Datia and Orchha ke Mahal. If you go to Rajasthan, we have Bundi ka Mahal, beautiful murals. Why do you have to go to palaces? Go to jhopdis, go to huts of tribals. Warli mural to hai Warli, aur kya hai? Right? So murals don't die out in medieval time, but our textbooks want us to focus on miniatures, so we shall do that. है ना? अब similarly, you go to literary arts. In literature also, you have variety. You can have religious literature or secular literature. You can have historic literature, history books. You may also have within religion, you can have different religions. वो तो अलग बात है ही. You may have the technical literature plus scientific literature. You may have popular plus entertaining literature. You may have foreign travelers and their literature. In different era, different forms become variously important. You should be able to, जैसे कि if I talk of, for example, foreign travelers. आपने notice किया है कि initial foreign travelers are all Greco-Romans, right? Megasthenes हो या बाकी सारे लोग. Then once you come to Gupta era, they are mostly East Asians, Chinese, Korean, etc. Korean भी है योंचो वगैरह, right? And then if you come to early medieval, you have Arabs. Then in the 12th century onwards, you have Persians, Paras के लोग. From the 15th century onwards, you have Europeans.
तो हर एरा में इंडिया का कांटेक्ट अलग अलग लोगों से ज्यादा, मतलब इन डिफरेंट फेजेस, ये रैंडम नहीं है, ये उन उन फेजेस में इंडिया किनके साथ ज्यादा जुड़ी हुई है ये दिखाता है। एंड तो दैट इज अ चेंज इन कंप्लीट structure of Indian economy, society, and outlook. So there are lots of things there. We'll discuss them. And in performing arts, we have dance, drama, music, classical, and folk. All those things we'll discuss them also. But आज तक UPSC has not asked the question on performing arts in mains. But तो उसको हम थोड़ा सा छोटे से में कर लेंगे. Majority questions come from the other two parts, three parts. This is the overall gamut of what we have to do. I used to go form by form till this mains के पहले तक जो मेरा lectures थे, वहाँ पे I used to take religion के एक दो lecture, visual arts के दो lectures, इस तरह चलता था. But this time I am trying to think, मतलब आज पूरा दिन बैठ के वही कर रहा था मैं, restructuring my notes from thematic into chronological, because I think that will be much more suitable for, क्योंकि अपने पास अभी समय है, अभी मेंस सामने नहीं है, टाइम है, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. So that is first thing I wanted to discuss. What is the syllabus? Is the syllabus clear? है ना? अब दूसरी बात करते हैं. The second thing is that, हाँ, second difference between pre and mains is that prelims is highly information centric. You have to know lots of facts. एंड उसलिए कल्चर बड़ा, कितनी किताब, पता नहीं कौन सी किताब पूछ लेंगे, 100 किताबों के नाम रटने पड़ते हैं. इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी. आई अंडरस्टैंड दैट एंड अप्रिशिएट दैट ऑल्सो. वो थोड़ा सा, इट बिकम्स टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन लोड ऑन अवर मेमोरी. चलो, अच्छी बात है कि वी डोंट हैव टू रिप्रोड्यूस देयर, जस्ट आइडेंटिफाई कि ऑप्शंस होते हैं सामने, फिर भी इट इज नॉट दैट इजी. So my point is prelims require lots of facts, means do not. मेंस में आपको फैक्ट लाइट जाना है, इंफॉर्मेशन लाइट. मेंस इज मोर कॉन्सेप्चुअल, मोर एनालिटिकल, और आपको बहुत कम फैक्ट्स चाहिए. नॉट ओनली दैट यू नीड लेस फैक्ट्स, यू कैन चूज योर फैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कालिदास की नाम लिखना, आप इन सम आंसर यू डिड मेंशन कालिदास एज अ ग्रेट ऑथर, जस्ट अज्यूम फॉर अ मोमेंट. इन प्रीलिम्स अगर कालिदास की तैयारी करनी हो, आपको उसके सारी किताबों के नाम रटने चाहिए. यू शुड नो अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, एंड ऑल दैट. इन मेंस मुझे कुछ नहीं, मुझे बस मेघदूत याद रखना है. आई जस्ट राइट दैट एक्शन, मेरे को वही याद है, सही तो है. आई डू नॉट नीड टू गिव मोर एग्जाम्पल्स टू प्रूव द सेम आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, आर्ग्यूमेंट और फैक्ट अलग अलग होती है. इन द मेंस वी आर गिविंग आर्ग्यूमेंट्स, एंड टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट्स नीड टू जस्टिफाई विद सम फैक्ट कि भाई देखो, मेरा कहना यह है, ये एविडेंस है. कालिदास महान कवि था, ये एविडेंस है. अब एविडेंस कोई सा भी दे दो, जब तक सही है, बात खत्म. बाय राइटिंग 5 नेम्स ऑफ कालिदास वर्क, by giving more evidences in support of same argument, it doesn't make my argument stronger. तो क्यों लिखने 4 नाम, एक नाम लिखो जो सिंपल है, आसान है, याद रटा हुआ है, चलो आगे. So you can be very selective, you can be very fact light, and you have choice of your own facts. तो एक तो you don't have to memorize everything in mains. That is so, आप simple facts, आपको, do you understand facts and difference in facts and argument, है ना? Do you make conscious efforts in writing, इन आपके माइंड में कि भाई ये मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, ये मेरी फैक्ट है. ये नहीं होता है कई बार, बिकॉज आई विल ऑल्सो एग्जाम्प्लीफाई एज वी गो अहेड कि हमारा थिंकिंग, आई एंजॉय अ लॉट ऑफ गोइंग इनटू कॉग्निशन. एक कल्चर का एक अच्छा फायदा ये होता है ना, बिकॉज देर इज नो डिफाइंड स्ट्रक्चर, देर इज नो वन डिफाइंड आंसर. फॉर एवरी क्वेश्चन यू मे हैव मल्टीपल आंसर्स, ऑल ऑफ देम इक्वली वैलिड. तो वी गेट अ लॉट टू प्ले विथ मेटाकॉग्निशन, जो हम थोड़ा करेंगे यहाँ पे, है ना? तो माय पॉइंट इज, यू कैन रिमेंबर ओनली सिंपल फैक्ट्स, यू कैन चूज सिंपल फैक्ट्स, एंड सेकेंडली यू हैव टू कीप द फैक्ट्स लिमिटेड एनीवे. आप प्री और मेंस के बीच में हाउ मच टाइम विल यू गेट टू रिवाइज कल्चर? 2 दिन मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट. In those 2 days, you cannot anyway revise entire ancient, medieval, and culture. It is practically impossible. तो आपको दूसरी बात क्या करनी है? Not only you have to keep the facts very simple, you have to keep the facts universal. By universal, I mean you should be able to use the same fact in different way at different places. ये थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा उसको let me explain that a little bit. अब देखो, unfortunately or fortunately, in India after independence, the Punjabi food has become national food, right? Dhaba culture has spread everywhere.
है ना? ये अभी अभी 70 साल में हुआ है, पहले कभी नहीं था। ये सब जगह रोटी और पनीर और ये सब कहाँ इंडिया में मिलता था? माई पेरेंट्स डिड नॉट ईट पनीर फॉर मेनी मेनी ईयर्स इन लाइफ। ये तो अब धीरे धीरे अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। तो व्हेन यू गो टू एनी पंजाबी ढाबा फॉर फूड, आपके पास बड़ा मेनू कार्ड आता है, उसमें 50 सब्जियां होती। डू यू रियली थिंक कि अंदर जो खान सामा के 50 अलग अलग रेसिपीज है? ग्रेवी एक नहीं होती, ग्रेवी 5 होती है उसके पास, बस 5 ही होती। देन इट इज फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन, राइट? अब my point, that is what we have to do. We have to have not one structure of the answer, not one fact, we have to have 5-10 facts, 5-10 टाइप के अप्रोचेस, बस। एंड देन यूपीएससी सवाल आपको 3 ही पूछने वाली है। इन मेंस जीएस1 कल्चर के सवाल 3 आते हैं। तो इवन इफ यू हैव 5-7 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, आपका काम हो जाएगा। डोंट हैव टू वरी अबाउट अरे अब नया क्या लिखो, अब नया नया नहीं चाहिए। यू डोंट नीड टू हैव न्यू, यू जस्ट नीड टू बी एबल टू कंबाइन दोस थिंग्स। अब दैट इज, सो माय पॉइंट इज दैट फैक्ट्स शुड बी मल्टीपर्पज फैक्ट। उसी फैक्ट को आप, जैसे एक इंस्क्रिप्शन अगर है, तो भाई इन पॉलिटिकल सेंस आई विल राइट दिस एग्जांपल, इन सम डिफरेंट वे आई विल यूज द सेम एग्जांपल फॉर सम अदर कॉन्टेक्स्ट। सो यू शुड बी एबल टू चेंज द कॉन्टेक्स्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। उसके लिए स्किल लगता है, प्रैक्टिस लगती है जनरली। ये आंसर राइटिंग की थियरी बता रहा हूं मैं अभी। व्हेन यू गो टू एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन, यू विल सी कि हाँ, दिस इज गोइंग टू वर्क। दैट वाज माय सेकंड थिंग। The second difference in pre and mains is that mains is much, much easier compared to prelims, at least insofar as the factual load is concerned. Yes. हम तो करेंगे ना 4-5 दिन अब वही। We will do that. ठीक है। आप आज का लेक्चर के लिए बस रुको थोड़ी देर। Then you tell me at the end of it, do you get it or not? अभी तो बस मैं थियरी दे रहा हूँ, एप्लीकेशन तो करना है। Now I want to mention one more thing, third thing before we go ahead about difference. Difference नहीं कहूँगा, but about approach to mains for culture. Look at this classification. मैंने सेम क्वेश्चंस को 3 बार क्लासिफाई करके दिया आपको हैंड आउट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्रोनोलॉजिकल, विच ईयर यूपीएससी आस्क्ड विच क्वेश्चन। इससे कुछ आपको पता नहीं चलता वैसे, बट यू एटलीस्ट नो कि हाउ द क्वेश्चंस आर गेटिंग इजियर और डिफिकल्ट, है ना? देन तीसरी, सेकंड क्लासिफिकेशन इज क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट इन डिफरेंट वे, कि भाई कौन से एरा से क्या सवाल पूछे जा रहा है। So you have prehistoric, protohistoric, you have ancient India. Within that also I have gone chronologically, but I have not mentioned those eras. But chronological questions है, and medieval, etc. So now you know कि medieval से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, 1 2 3 4 5 6 सवाल पूछे 12-13 साल में, right? So we have to focus on prehistoric also, ancient also, early medieval important है अलग से, वगैरह वगैरह. And then the third categorization is this descriptive versus interpretive. Now this is something that is the point I want to drive home. इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस को जब देखते हैं कल्चर में, लगता है कि यार पढ़ा है लेकिन आता नहीं है लिखना। दैट हैपेंस क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम इन कल्चर। यू थिंक यू नो एंड यू आल्सो नो यू डोंट नो। ये साथ साथ चलता है, टॉपिक तो पता है, लिख नहीं पा रहा हूँ। ये क्यों होता है? बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन कल्चर। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 वे। लेट मी जस्ट राइट अबाउट देम, थोड़ा समझा देता हूँ। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, and the second is interpretative. What is descriptive? It is generally factual. It is factual. It is, that is called the first order questions. जो आप questions टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो, based on that you get to know basic facts and you have to reproduce the facts in the answer. Descriptive. Example देता हूँ. You let me write first of all one example here. दो question लिखता हूँ. Just observe the question for just a moment. First question is, what are the features of Vijayanagara art and architecture? Features of Vijayanagara art and culture. Direct question. We know the facts 1, 2, 3, 4, 5 with some examples.
You can go to architecture, sculpture, painting, music, language, literature, whatever. The second question would be, during Vijayanagar era, to be Hampi emerged to become the cultural capital of South India. Discuss. Now, the second question is what I want to call as interpretative, and the first question is descriptive. The facts are the same. You don't need additional facts for second question. What you need is additional framework, additional interlinkages to be able to interpret. अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सेम लिखा जैसे पहले का लिख रहे हो, इन आर्किटेक्चर ये हाइट अचीव करी थी, इन कल्चर इन स्कल्पचर वो करी थी, then we are not answering the question. The question is not asking you what were the great achievements at Hampi. No, it is asking you, was Hampi the cultural capital of entire South India? तो थोड़ा फर्क समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, जनरली दैट इज नॉट टॉट, दैट इज नॉट रेड, इट इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन अवर टेक्स्ट बुक्स. फिर हम लगता है यूपीएससी ने कितना सोच समझ के, यूपीएससी नहीं सोच रही है. ये सवाल होते हैं अलग किताबों में, जो किताबें हम नहीं पढ़ते, जो काम हमारा होता है पढ़ाने से पहले पढ़ के आने का. ठीक है. The point is that these are the two types of questions. So let me explain what are these types of questions, so that whenever you look at any question, you should be able to identify and differentiate कि ये descriptive है कि interpretative है. In descriptive, for example, it would UPSC would ask you to write, let us say, describe the features. अब features किसके हो सकते हैं? Any art form, of any architecture, of any era, of anything. Describe the features of art form. Then you may have dynastic contribution. For example, Gupta patronage. Cholas were great builders. Mughal empire's patronage to painting. Dynastic contribution. The describe features पहले तो मैं art form के. You may also have patronage or any individual great patron. It could be Krishnadevaraya. It could be Badshah Akbar. It could be Ashoka's patronage. It could be Rana Kumbha, Raja Bhoj, anybody who is important cultural personality. या फिर हो सकता है कि it could be about specific cultural person like कबीर और नानक. तो भक्ति मूवमेंट के फीचर्स पूछेंगे तो ये फर्स्ट वाला टाइप हो जाएगा, एंड अचीवमेंट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु पूछेंगे तो थर्ड वाला हो जाएगा. बट है तो अल्टीमेटली डिस्क्रिप्टिव. वी हैव रेड देम इन द बुक्स, वी हैव रिमेंबर्ड देम, वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर प्रीलिम्स. तो हमारा आंसर, तो इसमें कोई हमें दिक्कत जनरली नहीं आती है इन दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. But if you look at the PYQs, about 30-40% of the PYQs only come from this first part. 50% से थोड़े ज्यादा PYQ आते हैं, 60% तक, from the second category, that is interpretative. अब ये सवाल क्या होते हैं? यहाँ पे 4-5 सब टाइप्स हैं. What are those subtypes? The first subtype is significance, relevance, legacy. What is the significance of Buddhism to modern era? How the Jaina tenets can help us solve the problems faced in the 21st century? Can Ashokan edicts or Ashokan Dhamma act as a guiding source for governance in 21st century welfare state? ये जो सवाल होते हैं कि भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दी, या फिर जैसे सवाल 2013 में पूछा था हड़प्पा का, टू व्हाट एक्सटेंट हड़प्पन अर्बनाइजेशन कैन गिव अस गाइडेंस अबाउट मॉडर्न एरा अर्बनाइजेशन. तो ये सारे कंटिन्यूटी, सिग्निफिकेंस, रिलेवेंस, लीगेसी वाले सवाल है. यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू नीड टू नो द एसेंस ऑफ द इशू. अगर मैं पूछूं कि वैदिक रिलीजन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म, आप थोड़े परेशान हो जाओगे भाई.
उसमें से क्या उठा के ले आऊँ मैं आज के ज़माने के लिए? तो you need to know the essence of every era properly so as to connect it with modernity or with any other thing. तो ये पहला होता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है इवोल्यूशनरी क्वेश्चन। उसमें यू फोकस ऑन change and continuity. This is a very typical aspect of history. Those who have studied history properly, they know कि भाई इसके बिना तो काम होता नहीं है। This asked one question that in the kind of greatness we see in the Gupta coins is not visible in the post Gupta era coins. ये सवाल दिखाने के लिए कॉइन्स का है, ये कॉइन्स का सवाल है ही नहीं। ये सवाल पूछ ये रहा है, गुप्ता एरा में कल्चरल ग्रेटनेस बहुत ऊपर था, उस गुप्ता में हम क्या नीचे आए कल्चरली? एक्सप्लेन दैट विद द हेल्प ऑफ कॉइनेज। तो इट्स अबाउट द एरा। तो ये इवोल्यूशन की बात है, या फिर जैसे मैंने कहा ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर फ्रॉम बराबर टू कैलाश। यू नीड टू हैव डिफरेंट स्टेज वाइज एनालिसिस। जैसे एक लुक एट चोल एंकल, यहाँ पे सवाल पूछता मैं इन डायनास्टिक कॉन्ट्रीब्यूशन, तो चोलास वेर द ग्रेट बिल्डर्स, पैटर्न्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और उसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो चोला एम्पायर फॉर्म्स द पिनाकल of Dravidian temple architecture. When I say pinnacle, I cannot just mention Chola anymore. I have to trace from the beginning of Dravidian and then show कि चोला कैसे उसका पिनाकल है। शिखर तक जाने के लिए पूरा पर्वत चढ़ना पड़ता है, राइट? So you start from pre-Pallava, Pallava era, and then show चोला कैसे पिनाकल है. So it will become change and continuity वाला question. The third category is easy but not that easy is comparison. कंपैरिजन, अब ये कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आई कैन आस्क यू टू कंपेयर फॉर एग्जांपल हड़प्पन रिलीजन विद वैदिक रिलीजन। कैन यू कंपेयर? इट इज वेरी इजी बट नॉट दैट इजी। व्हेनेवर दे आस्क फॉर कंपैरिजन, ऐसे कोई रैंडम कंपैरिजन नहीं होता है। दे हैव सम आइडिया इन माइंड व्हाई दीज टू थिंग्स ओनली आर कमिंग टुगेदर। फॉर एग्जांपल यूपीएससी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि गुप्ता एम्पायर एंड चोला एम्पायर इन जमाने में कल्चरल हाइट का ग्रेटनेस अचीव किया था हमने। अब व्हाई गुप्ता एंड चोला? व्हाई नॉट गुप्ता एंड राष्ट्रकूटा? Why not Chola and Mahajanapada? Any two random things. Why Gupta and Chola alone? There is some common dhaga, common sutra that connects the two. Both of them are representing the classical age of their region. अगर ये धागा समझ में आ गया तो काम हो गया। What is common in the two, that two things are coming together. What is classical age मैं बताऊंगा आपको बाद। Let me say there is another question. Fahian and Yuan Sang. करो कंपेयर। कैसे करो? आपको यार जाके माथापच्ची करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा नोट में जाके। कौन सी सेंचुरी थी, सेंचुरी थी। पाथ कौन सा था, पाथ कौन सा था। इसके ऑब्जर्वेशंस का, इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, कौन सा राजा था। ऐसे नहीं चाहिए। दीज आर जस्ट फैक्ट्स। फैक्चुअल आंसर लिखोगे नंबर नहीं आने। यू शुड अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ दीज पीपल आर रिप्रेजेंटिंग सर्टन आइडियाज which are different. Pahiyan comes to India at the time of Gupta Empire. Chandragupta the second perhaps is the king. That is the cultural pinnacle of India. Yuan Sang comes at the time of Harsha. The decline has started. So when you compare Fahian with Yuan Sang, firstly, you have to show through the observations का comparison, यहाँ पे cultural greatness था, यहाँ पे decline set in हुआ है। जब तक ये आपका extraction नहीं होता है, तो factual comparison बेकार है। Secondly, Fahian does not talk about politics at all. उसको जरूरत ही नहीं, इच्छा नहीं। ही इज फोकसिंग ओनली ऑन रिलीजन। जितनी बातें करता है सोसाइटी की, वो बहुत ही आइडियलिस्ट रोमांटिक किस्म से करता है। यहाँ पे सब चंगासी, ये तो बोलता है फाइयान। यूएन सांग इज वेरी मच ऑब्जर्वेंट। ही टॉक्स ऑफ पॉलिटिक्स। फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड से मिला कि नहीं मिला हमें पता ही नहीं है। यूएन सांग ने लिखा है हर्ष से मिला, क्या बातें करी। सो यू नो कि दोनों का राइटिंग का स्कोप ही अलग अलग है। फाइयान इज फोकसिंग ऑन रिलीजन, फोकसिंग ऑन विनयास। यूएन सांग इज इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग। तीसरी बात, फाहियान has largely been towards North India. Yuan Sang has been to not only Harsha's court, but also Pallavas and Chalukyas, and also the birthplace of our present Prime Minister, Vadnagar. वहाँ भी जा चुका है, तो वहाँ पे म्यूजियम बना रहे हैं, पता होगा आपको, है ना? So my point is, you get to know all India picture
in Faiyan, in UN Sang. You don't get that in Faiyan. तो ये अब इस पे हमने कुछ नहीं रटा है। आई डोंट इवन रिकॉल किसको लूटा गया था, किसको चोरी हुई थी, मुझे नहीं पता। शायद दोनों की हुई थी, पता नहीं क्या हुआ। अब हम वहीं पे ऑब्सेस्ड, भाई कौन सी फैक्ट किसकी है, कौन मथुरा गया था, कौन कौशंबी, क्या फर्क पड़ता है मथुरा कौन गया था? इट डजंट मैटर विच फैक्ट यू ब्रिंग, सो लॉन्ग एज यू आर सपोर्टिंग राइट आर्ग्यूमेंट। एंड व्हाट इज दैट राइट आर्ग्यूमेंट, यू शुड नो। हर हर चीज का अपना जेड गेस्ट होता है ना? तो यू हैव टू, व्हेन यू टॉक ऑफ Faiyan, it is talking about greatness of Indian culture. When you talk of Yuan Sang, the decline has come in. Faiyan is idealist, Yuan Sang is more realist. Faiyan only North India, Yuan Sang entire India. अब इसके इस स्ट्रक्चर के आधार पे फैक्ट्स याद रखना कितना आसान है। सो यू शुड नो व्हेन यूपीएससी कंपेयर्स टू थिंग्स, व्हाई डज इट कंपेयर? ठीक है, दैट इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन। देन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बच्चों को लगता है, वो तो आखिरी दो टॉपिक्स होते हैं, थीम्स होते हैं। एक है कॉजेशन। दिस इज द हार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो, एंड यूपीएससी लाइक्स टू आस्क सच क्वेश्चंस, नॉट इफ नॉट एवरी ईयर, हर दूसरे साल में आता है। 2024 में नहीं पूछा था, 25 के लिए तैयार रहो। ठीक है, कॉजेशन। फॉर एग्जाम्पल यू हैव फिलोसॉफी और रिलीजन इन्फ्लुएंसिंग मॉन्यूमेंट्स। इट इज नॉट अबाउट स्पेसिफिक, ऐसे मतलब बुद्धिज्म का इम्पैक्ट ऑन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर क्या है। नॉट ओनली दैट, इन डिफरेंट फेजेस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के करेक्टरिस्टिक बदलते रहते हैं, उसके साथ साथ आर्किटेक्चर की बदलते रहते हैं। वो कैसे कनेक्शन? सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन वेरी जेनरिक एट अ मेटा लेवल कि हाउ डज फिलोसॉफी अफेक्ट विजुअल आर्ट्स। उसके पॉइंट 1 2 3 मेटाफिजिकल लेवल पे लिख सकते हो आप। बट देन यू ऑल्सो हैव टू बी रेडी टू राइट स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म एंड स्पेसिफिक रिलीजन का कनेक्शन। सो हाउ आइडियाज, not only ideas, now ideas can be religious, ideas can be political also. Let us say कि I am a king ruling over a large empire. अब मेरे एम्पायर में 10 भाषा बोलने वाले 20 जाति के अलग अलग लोग हैं। अब मुझे तो सब पे रूल करना है, आई वांट टू इंश्योर दी हार्मनी। तो हाउ डू आई इंश्योर कि सबको साथ में जोड़ के यूनिफाइड कल्चर बनाओ? इंडियन गवर्नमेंट आज के दिन में क्या करती है, नोट पे लिखती है 15 भाषा। राइट, ये क्यों है? आर्ट फॉर्म तो है किस्म का। अगर आज से 500 साल बाद देखो कि इंडिया के नोट पे इतनी भाषाएं होती थी, दैट इज आर्ट फॉर्म, but that is having political purpose also, unity in diversity. So how ideas influence monuments? As Buddhism is spreading everywhere outside Ganga Valley, so it wants to convert other people into Buddhism. तो कैसे करेंगे कन्वर्जन आप? ऐसे नहीं कि भाई आपका भगवान झूठ है, आपका धर्म खराब है, आप हमारे में आ जाओ, वो बात नहीं करेगा। बुद्धिज्म का तरीका है। बुद्धिज्म में तो एक तो भगवान होता नहीं है ओरिजिनल। तो वंस यू कन्वर्ट टू बुद्धिज्म, यू कैन कन्वर्ट बाय कीपिंग योर गॉड इंटैक्ट, नो प्रॉब्लम। आपके भगवान के साथ साथ कन्वर्ट हो जाओ। तो व्हाट बुद्धिज्म विल डू, स्तूपा का आर्किटेक्चर के बाहर एक लगा देंगे यक्ष की मूर्ति। यक्ष कौन था? यक्ष वहाँ के लोकल लोगों की लोकल देवता थी। अब उसको बुद्धिज्म ने अप्रोप्रिएट कर लिया। उस देवता की पूजा करने वाले सारे लोग जो होंगे, दे कैन एंटर स्तूपा आल्सो। ये तो हमारा ही भगवान है, हमारा ही धर्म है। सो यूपीएससी आस्क्स अ क्वेश्चन, हाउ द फोक आर्ट, फोक सिंबल्स वेर यूज्ड इन स्तूपा आर्किटेक्चर। Question is not about architecture. Question is about what methods of visual arts were used by Buddhism to propagate itself. It's the mechanism of spreading of religion. Similarly, you go to temple architecture, you go to Puranic literature. पुराण इतने बड़े बड़े क्यों लिखे गए? It is Puranic Hinduism. It is trying to go for acculturation of all the local cults. तो सबको जोड़ना है तो भाई you have to create great Puranic literature. सब कहानियां जोड़ दो। So ऐसे कला धर्म की दासी होती है, right? So you have those. So UPSC is asking those questions. How ideas are influencing monuments. अब जैसे एक क्वेश्चन, भक्ति एरा, हाउ भक्ति एरा, और ज़्यादा भक्ति एरा नहीं कहूँगा, भक्ति मूवमेंट अफेक्टेड लैंग्वेज लिटरेचर। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज द सोशल क्रिटिसिज्म इन भक्ति मूवमेंट, की भाई अबाउट कास्ट एंड क्लास एंड जेंडर, उसके बारे में भक्ति की वो हमें उसकी सोचने की आदत लग जाती है। यूपीएससी पूछती कुछ और है। हाउ भक्ति, अब ये देखो कबीर नानक इतने बड़े जो होते हैं, व्हाई कुड दे बिकम ग्रेट? ऑन वन लेवल दे हैव ग्रेट आइडियाज, इसकी दुनिया को जरूरत है, आई एग्री। एट द सेम टाइम दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ऐसे और भी 10 लोग हो सकते हैं उनके पास ग्रेट आइडियाज है।
but some people could succeed. Why? Because apart from having great ideas, they also are great propagandists. उनकी जो कविता है उन्होंने ऐसी लिखी है कि लोग गुनगुना पाएंगे, याद रख पाएंगे. दे नो हाउ टू डू प्रॉपर मार्केटिंग ऑफ दैट एरा. उस जमाने के चैनल्स वही थे, कविता लिखना था. तो यू हैव टू यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग, फॉर्मेट्स ऑफ पोएट्री. क्यों? टू स्प्रेड योर थॉट. तो व्हेन यूपीएससी आस्क्स यू भक्ति मूवमेंट हैज शेप्ड इंडियाज लिटरेचर, इसका फोकस सेकंड पे ज्यादा है, फर्स्ट पे कम है. लिखना दोनों है, बट दूसरा स्किप नहीं करना है. न्यू फॉर्म्स ऑफ पोएट्री आर कमिंग अप. इफ यू गो टू कश्मीर, यू हैव लाल वाक. If you come to Mira, you have Mira ke Pad. If you come to Kabir, you have Bijak. If you go to Maharashtra, you have Abhanga and Ovi. If you go to Karnataka, you have Vachan of Basavanna. If you go to South India, you have Tamil poetry. So different poetic formats are emerging. ये पूछ रहा है. So my simple point is that there are connections, linkages, causations. इस तरह के questions जो होते हैं वो हमें थोड़े मुश्किल इसलिए जाते हैं क्योंकि हमने उस तरह पढ़ा नहीं हो. The last category is exactly reverse of that causation. We call it representation. Or if I have to, this is also technical term, there is other technical term called as iconography. Iconography, what does it mean? अब इसको उल्टा कर दो. If you are in the 21st century looking at a stupa and I ask you what kind of society can you recreate using stupa visuals? वहाँ पे जो sculptures है उसके आधार पे आप मुझे उस समाज के बारे में क्या बता सकते हो? If I look at temple sculptures from the early medieval, अब मुझे बताओ कि हाउ दिस टेम्पल स्कल्पचर टेल मी द स्टोरी ऑफ अर्ली मिडिल सोसाइटी, जेंडर के बारे में, क्लास के बारे में, कास्ट के बारे में, और एनीथिंग एल्स इन सोसाइटी. सो एज अ टुडेज कंज्यूमर ऑफ दैट आर्ट फॉर्म, हाउ कैन आई रिकंस्ट्रक्ट द ओल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स एंड वॉट एवर यूजिंग दिस मॉन्यूमेंट्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स? तो ये अलग किस्म का सवाल है, यूपीएससी ने ये भी कई बार पूछा है. अब इसके लिए आप तैयार हो? आपने कभी सोचा है ऐसे? यूपीएससी पूछ रही है. तो ये रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्सेप्ट है बड़ी जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है. अब चलो हम देखेंगे, सवाल कई सारे देखेंगे. आई हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स देयर, बट माय पॉइंट इज दैट दीज आर द टू कैटेगरीज. सो 60% questions come from the second category, 40% questions historically have come from the first category. These are the first order question, these are second order question. यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, हमें उसके लिए तैयार होना. सो माय ऑब्जेक्टिव इज टू अज्यूम दैट जब हम ये सवाल करेंगे, आई विल नॉट गो टू लॉट ऑफ डिटेल्स बिकॉज आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप प्री के लिए थोड़ा पढ़े हो, आपने फाउंडेशन कोर्स की पढ़ाई कोर्स में करी है, किताबें पढ़ी हुई, तो यू नो बेसिक फैक्ट्स. So I will be going light on the first order question. I'll be going heavy on the second order question. ठीक है, हम करेंगे दोनों ही, बट फोकस थोड़ा मेरा इस तरफ ज्यादा होगा बिकॉज आई वांट टू टेल यू हाउ टू थिंक अबाउट थिंग्स. स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेमवर्क्स विल बी मोर हेल्पफुल इन द पहला तो मैं सिंपल फैक्ट्स. ठीक है. हाँ, होता क्या है ना, आई विल बी गिविंग ए मॉडल आंसर नो डाउट, बट जनरली आई अंडरस्टैंड दैट मॉडल आंसर्स देके मैं आपको नुकसान कर रहा हूँ. आई डोंट नो इफ टीचर्स टेल यू वेरी ओपनली, but model answers then has become a marketing compulsion in the post covid era. तो और आप कोविड जनरेशन कॉलेज करके आए हो तो आपको तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की. बट सो आई विल बी गिविंग मॉडल आंसर्स, बट आई विल टेल यू व्हाई. देखो मॉडल आंसर ना एक नहीं होता. देयर फॉर सेम क्वेश्चन यू मे हैव मल्टीपल मॉडल आंसर्स एंड ऑल ऑफ देम कुड बी इक्वली वैलिड. आई वांट यू टू थिंक लिटिल ओपनली अबाउट दैट. उसको द फ्रेज आई यूज इज दिमाग की खिड़कियां खोलना. ये बहुत ज़रूरी है, बट इसको इसमें यू विल फील लिटिल अनकंफर्टेबल. अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ अस, मैं भी और आप भी, आर प्रोडक्ट ऑफ मैकॉलियन सिस्टम. मैकॉले में क्या होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से बैच प्रोडक्शन होता है. फैक्ट्री में जैसे होता है ना, वैसे बच्चों का बैच प्रोडक्शन स्कूल में होता है. दैट इज मैकॉलियन सिस्टम. उसमें इफ आई टेल यू कि भाई एक चित्र बनाओ गाँव का, रूरल कंट्री साइड का पेंटिंग बनाओ, आप क्या तीन पर्वत, एक मंदिर ऊपर, हाँ, नीचे सीढ़ी आएगी, सामने एक घर होगा, यहाँ पे कुआं होगा, ऐसा रास्ता आएगा, एक एक सूरज होगा और दो कौवे होंगे, यही बनाओगे. So that is the level to which our creativity has been killed by this Macaulay system.
You can't imagine our own village in your own way. So if I leave you completely open कि भाई हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो चाहे हम बनाएंगे, तो you will feel uneasy and uncomfortable. I know that. So what I want to do is to not give you complete freedom. I will give you model answers, but उसके अलावा उसके साथ साथ if not for all, for many questions we'll discuss multiple answers. इसमें क्या क्या possibilities बनती है, and that mental exercise is extremely useful. ठीक है, let me try that one way. एक एक सवाल लेते हैं, यूपीएससी का ही सवाल है। बहुत सिंपल सवाल है, जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ हाउ दिस वुड वर्क। चलो यही वाला लेते हैं। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। लेट मी सी, मैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज्वाइन किए जा रहे हैं। एनी डाउट ऑनलाइन सो फार? कोमल, रिजू, प्रिया, जूम, योगेश, फातिमा, क्या हुआ? और भी योगेश है क्या? अच्छा, यहाँ कोई और योगेश होगा। ठीक है, अनु, चूरी, प्रदीप, सौविक, मुक्ता, संजीव। नो डाउट, ठीक। नो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने के बाद देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। In any textbook of ancient India, the very first chapter generally is how to write history, what is the meaning of history, how history writing has changed over the centuries and decades. And the second chapter is geographic, is how geography of India has affected its development. तो ये तो किताबों में है, हम जनरल चैप्टर स्किप करते हैं, किसी ने पूछ लिया वहीं से। फिर भी आपने स्किप भी कर दिया हो तो भी इसका आंसर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक एरा, मौर्यन एरा, गुप्ता एरा। पूरा एंशिएंट इंडिया है, खुली चिट्ठी है, जहां से एग्जाम्पल चाहे उठा लो, नो प्रॉब्लम। सेकेंडली, इट इज नॉट अ क्रिटिकली एनालाइज क्वेश्चन, इट इज जस्ट एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन। तो उसने और भी काम आसान कर दिया अपने लिए। इवन देन आई वॉन्ट टू डिस्कस इट अ लिटिल बिट। एनीबडी फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल हियर? कोई है ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला? कोई नहीं है क्लास में, ठीक है। So there is a term called as geographic determinism. Have you heard of this? What does it mean? है ना? तो ये सवाल क्या पूछ, अगर ये क्रिटिकली आर्ग्यू या एग्जामिन या एनालाइज होता, तो वी वुड हैव टू गिव आर्गुमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स कि ज्योग्राफी डज shape history, culture, etc. to some extent, not completely. We have to go arguments from both the sides. But यहाँ पे they don't ask us those debate. They have not asked us that debate. They are asking examples, दे तो बताओ कि कैसे कैसे शेप किया है, इम्पैक्ट किया है। इवन देन हाउ वुड यू गो अबाउट इट, कि इसको कैसे लिखोगे आप? What would be the approach and structure? Okay, so one approach would be you would go from north to south. So let me call it structure one. You go from north to south. ठीक है, इसमें we'll take example of Himalayas, of Khyber Pass, because ancient India में Khyber Pass is part of India, right? Khyber Pass. Then we will take Rajasthan is arid land, Gujarat has coast, Chota Chota Nagpur has iron, Brahmaputra is difficult to colonize. Then Vindhya separates north from south. South India is very small regions of alluvial zone vis-a-vis North India. Presence of coastal community, ports and trade. आप north to south आ गए. What is the other approach? Okay. उसके आगे क्या लिखोगे फिर? Agreed, agreed. I understand the approach. You want to go chronological. ठीक. So second approach is chronological. So this would be spatial analysis. This would be chronological analysis. You start from the very ancient times, prehistoric times.
कि जहाँ पे यू हैव स्टोन का सप्लाई, वहीं पे you have the prehistoric communities who require stone for stone tools. Then you have iron ka supply that acts as the locus for emergence of strong states. You have the water supply, river valleys, they became the center for urbanization gradually, settlements and urbanization. So you can come from there to historically, भाई मौर्यन की बात एग्जाम्पल कर लो, गुप्ता की कर लो, ऐसे करते करते you can pick up some examples. That is chronological. What else? Correct. I was waiting for that. Structure 3. वो कैसे होगा? Yes. So you go for geographic features. जैसे कि you have physiography, you may have rivers, you may have climate, etc. Right? So now for the same question with the same facts, you can write the same answer in 3 different approaches. इसमें से होता क्या है? I want to talk about 2 important things here. Why this is important? Look at the question once again. Explain the geographic factors towards the development of ancient India. Generally हम कहते हैं keywords पकड़ो, keywords पकड़ो. What is the keyword here? वो तो पूरा स्टेटमेंट हो गया फिर तो. You have 2 keywords यहाँ पे. Generally there are 2 keywords, keyword A and keyword B. Now which of these 2 is the primary keyword? It depends on us to choose. ये उसको नोटिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. A single question may have more than one keyword, then not all the time there is clear hierarchy between 2 keywords. Sometimes there is, sometimes there is not. यहाँ पे है नहीं hierarchy, ये हम पे डिपेंड होता है. If you think that keyword A is the primary keyword, then I will deconstruct geographical factors. I can go to mountain, raw material, rivers, climate, etc., and create examples for them. If I think other way around, if I think that ancient India is the keyword, I can go chronologically. I can deconstruct ancient India. अब ancient India को अगर deconstruct करना है, तो I can think of another structure also. वो कौन सा होगा? जो आपका typical होता है? Political, economic, social, religious, cultural. I can get one example of how geography affects politics. One example of how geography affects economy also. ये भी चल जाएगा. क्या दिक्कत है? So it depends on what keyword I choose to deconstruct and create the answer. For the same question, I may have 4 different answers. All 4 of them are equally valid. तो ये possibilities culture में बहुत ज़्यादा है. It may not be applicable to all the GS 1, 2, 3, 4 papers. कुछ जगह ज़्यादा है, कुछ जगह कम है. कल्चर में तो आपके पास खुली छुट्टी है, जैसे चाहे आंसर क्रिएट कर लो, नो प्रॉब्लम. अब once you think of these 4 answers, दूसरी बात यहाँ पे एक और आती है. सॉरी, नहीं आपको चारों सूझेंगे नहीं वहां पे. मैं वही बता रहा हूँ. आप जब एग्जाम हॉल में प्रेशर में 7 मिनट की लाइन होगा, आपको एक ही सूझेगा. जो पहले माय पॉइंट इज, जो एक जो सूझेगा अच्छा सूझना चाहिए. मिक्स तो नहीं होगा. मिक्स क्यों होगा? यू हैव टू हैव सम अप्रोच. आई टेल यू है. एक और चीज बताता हूँ, चलो इसके पहले जाते हैं हम. हाउ ह्यूरिस्टिकली वी वर्क, वी थिंक, उसकी पहले बात कर लूँ मैं. जनरली व्हेन यू लुक एट अ क्वेश्चन, जैसे आपने शुरू किया, आपने कहा आर्यन की बात, आपने कहा मौर्यन की बात. ये क्या थिंकिंग था? इसको कहते हैं डेटा पॉइंट्स. यू लुक्ड एट द क्वेश्चन एंड यू स्टार्टेड टू थिंक, यार मेरे को इसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स पता है. मेरे को ये फैक्ट 1 पता है, फैक्ट 2 पता है, फैक्ट 3 पता है, तो चलो इनको जोड़ जाड़ के कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाए. यही होता है. इट इज हाउ नॉर्मली वी थिंक. We think of 4 or 5 relevant facts and then we just then force fit them into some kind of framework. बन गया हमारा आंसर. तो this is true. This is called as from data to structure is one approach, and it works in many cases. It works in many cases, no doubt. And there could be exactly opposite approach.
that is from structure to data. अब ये दोनों जो अप्रोचेस है, दोनों के अपने प्लस माइनस है। फर्स्ट अप्रोच क्या है? उसका फायदा सिंपल है, इट इज वेरी इजी। तुरंत देख लिया, 4 पॉइंट आ गए, लिख दिए, बात खत्म। दिमाग को लोड नहीं चाहिए, तो इट इज इजी। Secondly, not for every question you will have lots of structures in mind. Although after the end of our sessions you will have lots of structures, but generally आपको लग सकता है मुझे स्ट्रक्चर पता नहीं, सही है गलत है, 4 डेटा पॉइंट्स तो याद है, लिख दो आंसर। तो for some questions at least you may be forced to go to first approach because of the compulsion की उतना ही आता है। सेकंड पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर टू डेटा। यहाँ पे these are the 4 structures, हम जब देखे थे हमने अभी, ये 4 स्ट्रक्चर्स है। You can go spatial analysis, temporal analysis, geographic features and dimension analysis. ये 4 स्ट्रक्चर मैंने अभी तक आपसे एग्जांपल की बात ही नहीं करी। Without going into any fact, we can still have structures ready. Right? अब facts क्या है? Facts are just supportive facts. वो तो आप जैसे कोर्ट में जाते हो एंड यू गिव आर्ग्यूमेंट, आप दलील देते हो, तो आपको भाई देखो एज पर क्लॉज ए बी सी डी, तो एज पर क्लॉज ए बी सी डी इज योर फैक्ट, बट दलील जो आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका आर्ग्यूमेंट है, डायमेंशन। So this is entirely a skeleton structure of argumentation without any supportive fact. इसके लिए fact खोज लो बाद में बैठे बैठे। It does not matter. जैसे if I ask you for example how riverine valley or alluvium plain have impacted politics. You may give example of North Indian Mahajanapadas. You may give example of Kaveri Valley and Chola Empire. क्या फर्क पड़ता है? For me both are the same things. आपका आर्गुमेंट तो वही था कि फर्टाइल अलुवियल रिवर वैली supports resource generation, surplus appropriation that creates a strong state that helps in the cultural rich powerful state emergence. ये आर्गुमेंट है। एग्जाम्पल कोई आपको देखो फर्क, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें फैक्ट्स की किस्म चाहिए, नंबर नहीं। देयर इज नो पॉइंट इन मेंशनिंग कि भाई चोला एम्पायर इन कावेरी वैली, सातवाहना इन कृष्णा गोदावरी वैली एंड मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर इन गंगा वैली। ये तीनों फैक्ट्स एक ही पॉइंट सपोर्ट करते हैं, तो तीनों लिख के आई एम वेस्टिंग माई स्पेस इन द आंसर। आई विल नॉट गेट मोर पॉइंट्स फॉर द 3 सिमिलर फैक्ट्स। मल्टीप्लिसिटी डज नॉट मीन डाइवर्सिटी, इसको समझो। मल्टीप्लिसिटी डज नॉट मीन डाइवर्सिटी। ये तीनों फैक्ट्स मल्टीपल फैक्ट्स हैं, चोड़ हो, सातवाहन हो, गुप्ता हो, मौर्य, बट वो सेम किस्म के फैक्ट्स हैं, दे आर नॉट डाइवर्स। सो ऑल दीज 3 फैक्ट्स विल बी एबल टू सपोर्ट ओनली वन सिंगल आर्ग्यूमेंट। तो 3 लिख के मैं मेरे स्पेस बर्बाद कर रहा हूँ, मैं नया पॉइंट लिख ही नहीं रहा हूँ, मेरे को उस आर्गुमेंट के नंबर मिल गए हैं 1 पॉइंट लिख के, आगे चलो। मैं क्यों बता रहा हूँ, समझो। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज इफ यू गो फ्रॉम स्ट्रक्चर टू डेटा, यू विल बाय डिफॉल्ट, जैसे कि यहाँ पे आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो आप बाय डिफॉल्ट अलग अलग पॉइंट्स की बात करो, आर्गुमेंट्स की। If you go from political, economic, social, religious culture, you will by default be going for different arguments, you will choose different facts. If you go for physiography, rivers, climatology, etc., you will choose different facts automatically. So when you go from structure to data, फायदा क्या होता है? You will not be repeating similar arguments. You will not be repeating the same type of fact. And you will also not be forgetting something. यार मैंने मेरा आंसर गलती से, अगर इफ आई लेट अस से आगे क्रोनोलॉजिकल, इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, व्हाइल गोइंग क्रोनोलॉजिकल आई ओनली फोकस ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, आई मे हैव फॉरगॉटन रिलीजियस। इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन रिलीजन सोचा था आपने? नहीं सोचा था। ज्योग्राफी ऑन आर्किटेक्चर, रॉ मटेरियल बदलेगा, पत्थर बदलेगा, आर्किटेक्चर बदलेगा। इफ यू गो टू कश्मीर, रूफ अलग होंगे। इफ यू गो टू बंगाल, टेराकोटा के मंदिर बनेंगे। इज इट नॉट इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी? इट इज। So my point is, when you go from structure to data, you first think of structure, you have the entire answer का format ready in your mind, बस fit करने के लिए data point खोजो दिमाग से यहाँ वहाँ से heuristically. So that also is a good approach. So I am not saying कि भाई this approach is superior to the first one. Both इसमें superior inferior की बात ही नहीं है। बात यह है that you have to be very conscious of which approach you are following, and there is a high possibility that out of 3 questions UPSC will ask,
यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई वन अप्रोच टू ऑल द थ्री ऑफ देम। आपको दोनों आना चाहिए, किस सवाल में ये आ जाए, कुछ में वो आ जाए। बट द सेकंड अप्रोच के एडवांटेजेस तो मैंने आपको दो बताए। सबसे वो ये है कि यू विल नॉट मल्टीप्लाई द फैक्ट्स अननेसेसरीली, यू विल फोकस ऑन डाइवर्स फैक्ट्स। एंड सेकंडली, यू विल नॉट मिस आउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ यू गो बाय सेकंड। पहले में क्या होता है, जो 5 फैक्ट पहले याद आ गए लिख दिए। जैसे इफ यू कम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, वी नो दैट यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, अब डेटा को हम प्लॉट कर देते हैं रैंडम कहीं। फिर देन वी हैव टू क्रिएट इक्वेशन टू फिट द कर्व, राइट। हमने कर्व फिट कर दिया। तो पहले डेटा और फिर कर्व फिटिंग इज द फर्स्ट अप्रोच। कि 5 फैक्ट याद आ गए हैं, चलो उनको अरेंज करके कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाए। एंड द सेकंड अप्रोच इज, मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन का कर्व है, लेट मी फाइंड आउट कि यहाँ पे कोई फैक्ट मिलती है क्या, या यहाँ कोई फैक्ट मिलती है, या फिर यहाँ कोई फैक्ट मिलती है। तो इट्स अबाउट मेंटल ट्रेनिंग। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्स, हमें सारे फैक्ट, दैट्स व्हाई यू हैव टू गो वेरी फैक्ट लाइट। द फर्स्ट थिंग वी डिस्कस्ड आज अभी से 1 घंटा पहले, ठीक है। तो दिस इज, अब इस क्वेश्चन में आप इसको सुंदर बनाने के लिए, इफ यू गो फॉर एग्जांपल, देखो हर मेथड के अपने फायदे होंगे। इफ यू गो बाय द फर्स्ट वे और थर्ड वे, में फायदा क्या होगा, यू कैन ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। बट इन द फोर्थ वे, you may be able to draw a map, but it will not fit very well with the narrative। साथ साथ अच्छा नहीं जाएगा। तो हर मेथड के अपने अपने फायदे प्लस माइनस, यू हैव टू चूज। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, इट्स जस्ट कॉन्शियसनेस। हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल्स तो ठीक है, एग्जाम्पल कोई दिक्कत ही नहीं है। हाउ, जैसे लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसमें कंक्लूड करना है। हाउ वुड आई कंक्लूड? स्टार्टिंग तो ठीक है, इंट्रोडक्शन करना है भाई, लॉट्स ऑफ इंडिया इज अ सबकॉन्टिनेंटल कंट्री विद ह्यूज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी एंड देयरफॉर लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, हम लिख दिया, इंट्रोडक्शन इज नॉट डिफिकल्ट। कंक्लूजन में क्या लिखो? वो आप वो सही बोल रहे हो। हिस्ट्री में क्या होता है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट ये है दैट इंट्रोडक्शन शुड बी बैकवर्ड लिंकेज। इसके पहले क्या था, ताकि यहाँ तक आप पहुंचे हो, कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन। एंड कंक्लूजन इज फॉरवर्ड लिंकेज, कंक्लूजन कॉन्सिक्वेंस वगैरह। बट यहाँ पे बैकवर्ड तो बैकवर्ड कुछ है ही नहीं, तो वो तो यहाँ पे काम नहीं आएगा। Other factors also influenced. Good. So now you went to the original debate of determinism, right? कि भाई geographical factors are very well important, but not final. There are many other factors that come into play. ठीक है? That also have influence. That is one good conclusion. A standard conclusion, if you have identified कि भाई this is a question indirectly without saying it's about geographic determinism, उसको criticize कर लेंगे एक लाइन में। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? तो वो फॉरवर्ड वाला ही हो गया, बट ठीक है, उसमें इट्स नॉट दैट पावरफुल। चल मतलब चल जाएगा, है ना। एक एक मेरे मन में पॉइंट, देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर में हम यहाँ पे जहाँ भी जाएंगे, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इम्प्लिसिटली is India is subcontinental. We have too many diverse geographical phenomenon. Therefore, we have diversity of influences. बट ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस राजस्थान में जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा में है, जो हिमालय खैबर में है और कावेरी में है, ये सब अलग अलग है। तो डज इट मीन इंडिया इज ऑल्सो अलग अलग? ज्योग्राफी क्रिएट्स ओनली डाइवर्सिटी और ऑल्सो क्रिएट्स यूनिटी। तो सबकॉन इंडियन ज्योग्राफी हैज ऑल्सो क्रिएटेड सबकॉन्टिनेंटल यूनिटी ऑफ सर्टन फैशन। तो जो आज की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दोनों जो है, बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी टू सम एक्सटेंट। आपके पल्ले पड़ रहा है इस चीज को? एनीवे, सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ कंक्लूडिंग, विल डिस्कस। हम क्या करेंगे, इन मेनी क्वेश्चंस विल हैव 2-3 इंट्रोडक्शंस एंड 2-3 कंक्लूजन्स फॉर सम क्वेश्चंस, सो दैट यू नो कि कैसे सोचा जाए उसके बाद इसको। हम ये करें, यूनिटी भी बनाते हैं, जैसे मानसून है, ठीक है। तो मानसून यूनिटी नहीं अरे यार, पीवाईक्यूज देख लो आप। 2-3 साल पहले यूपीएससी ने पूछा था पुरवैया के बारे में, जीएस 1 में।
यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते पुरवैया? हाउ ज्योग्राफी इम्पैक्ट्स कल्चर, एग्जाम्पल पुरवैया। इन बिहार एंड यूपी यू हैव लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, है ना, वो पूरा जमाना से शुरू से है। जो वर्णन किया ज्योग्राफी का कालिदास ने रघुवंशम के शुरुआत में। लेट मी नॉट ओपन दोस थिंग्स हियर, बट द पॉइंट इज इट आल्सो हैज हेल्प्ड अस यूनिफाई। इंडिया नाम की एंटिटी क्यों बन पाई? इंडिया इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ एशिया, वी आर एशियंस, ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर इंडियंस। मतलब हमें कुछ सब में, भले आप दिल्ली से आओ या चेन्नई से आओ, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स यू, एंड दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ सबकॉन्टिनेंटल आइडेंटिटी। वो क्या है? एनीवे, लेट अस नॉट गो इनटू फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, बट यू गॉट द आइडिया दैट सेम क्वेश्चन वुड हैव मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। हमें थोड़ा सा कोशिश करनी है कि अलग अलग स्ट्रक्चर सोच पाए। Now one more thing before we start our proper study, I want to give you a brief idea of timeline. Very brief. क्या हुआ? We will do timeline every day. अभी तो टाइमलाइन जो है इट इज जस्ट अबाउट मेजर फीचर्स, बट वंस यू गो टू सेपरेट आर्ट फॉर्म्स विल हैव मल्टीपल टाइमलाइंस एवरी टाइम। ठीक है। नाउ इफ यू गो टू प्री हिस्ट्री, इन प्री हिस्ट्री फॉर द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर हैव बीन ओनली वन क्वेश्चन, द मेसोलिथिक पेंटिंग्स। तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, because from cultural aspect in the prehistoric era we may have paintings, we may have tool technology, and we also may have some cognitive archaeology कि रिलीजन के बारे में सोचो वगैरह, बट आई थिंक दैट विल बी टू टेक्निकल। तो एक सवाल जो पॉसिबल था भीमबेटका पूछ लिया यूपीएससी ने पेंटिंग का, दैट इज ओनली वन एस्पेक्ट दैट इज रिलेवेंट हियर। यू कम टू हड़प्पा। इन केस ऑफ हड़प्पा you have two major things. Firstly, it's urbanization, its features वो तो सब जानते हैं। Secondly, its legacy. Earlier we used to think, आज से 40-50 साल पहले तक, that हड़प्पा disappeared, it declined, it disappeared, but now we know it is not true. जब हड़प्पा को खोदा गया था, जॉन मार्शल was the DGASI, and John Marshall had written about it, that to large extent he thought that Harappa had influenced Hinduism. But in the British historiography, those things did not hold water. Generally ये लिखा गया कि हड़प्पा खत्म हो गया, then Aryans came from outside, and जैसे सिस्टम रीस्टार्ट होती है कंप्यूटर का अपना, वैसे इंडियन सिविलाइजेशन गॉट rebooted, restarted from scratch. But now we know it is not true. Aryans did come, they had their own language, own culture, but they were very few people. What happened actually is that once they came, they intermixed with local people, and what we call today as Hinduism is the outcome of Vedic Aryan's religion and also old Harappan, they intermixing together. तो ये जो मिलजुल के बना हुआ है, it is syncretic, it is composite from the very beginning. It is not purely Aryan culture, it is not purely Harappan culture. Mix जोड़ जाड़ और ट्राइबल भी उसके साथ साथ होगा, बट उसका डेटा सर्वाइव नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, बट वो तो जरूर होगा। Lots of things have come together. So when you talk of legacy of Harappa, what has survived? You have to trace lots of things. Are they only religious? No. There will be a lot of other cultural things also which have survived the decline. Are they only intangible? अभी परसों भाषण हुआ, आपने देखा राज्यसभा में सुधा मूर्ति का? मतलब एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले, भूल गया था, और सुधा मूर्ति ने उसको रिवाइव। आई वाज सो हैप्पी दैट शी स्पोक अबाउट एन एग्जाम्पल। शी वाज डिस्कसिंग द बजट। So all the MPs are talking about the budget के बारे में, क्या सही है, क्या रिक्वायरमेंट है वगैरह। तो he is talking about how the Indian culture has been storytelling culture and how storytelling is important for our education today, and what should the finance minister do for education budget, in education budget to include storytelling। उनका वो, बट उसमें कहानी बता रहे हैं। उनका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया उन्होंने। वी कैन काउंट दैट इन अवर आंसर ऑल्सो। कहते कि भी हड़प्पा में वी हैव फाउंड पॉटरी, एंड दिस पॉटरी हैज कम विद पेंटिंग्स। उसमें एक पेंटिंग पाया गया है जहाँ पे एक पेंटिंग में ऐसा घड़ा है, एक पॉट है, पॉट के अंदर पत्थर है, और उसके उसके एज पे एक कौवा बैठा हुआ है। ये सब कहानी हमें बचपन से पता है। दिस स्टोरी हैज कम फ्रॉम हड़प्पा। इज इट नॉट कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन? मतलब मैं सुना तो मेरे अब शरीर पे ऐसा कांटा आ गया कि अरे यार,
दिस इज, अरे वो तो एसी वाला होगा। बट माय पॉइंट इज दैट व्हेन यू व्हाट कंटिन्यूड, द स्टोरीज हैव कंटिन्यूड इन हड़प्पन टाइम, दे हैव नॉट डिसअपीयर्ड। हमारे अंदर, हर एक के अंदर अगर वैदिक वाला कल्चर है तो हड़प्पा वाला कल्चर भी है, वी जस्ट डोंट नो दैट। एनीवे, सो लीगेसी इज इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ वो भी है। इवन रादर मैं आपको बताऊं, नाउ देखो, आपने अच्छा पॉइंट छेड़ दिया, बता देता हूँ। सिलबट्टे का, इट्स नॉट ओनली सिलबट्टा, create a framework on that. Whenever you think of any society, let us say I want to study the uh, temple sculpture, and from that what can I know about medieval society, पूछा यूपीएससी ने। और I look at the Mughal era paintings, and from Mughal paintings what I can think of the contemporary society। उसमें हम जब सोसाइटी की बात करते, वी थिंक ऑफ जनरली कास्ट, क्लास एंड जेंडर। कास्ट, क्लास, जेंडर, ये थोड़ा ठीक है, मतलब लिखना ही, मतलब वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव टू राइट दोस पॉइंट, दे आर गुड पॉइंट्स, बट आप, योर आंसर शुड नॉट फिनिश देयर। कास्ट, क्लास, जेंडर विल मेक ओनली हाफ द आंसर। आगे चलो, देन यू गो टू समथिंग कॉल्ड एज रोजमर्रा की जिंदगी, डेली लाइफ। एंड इन डेली लाइफ you have the kitchen utensils, you have the tools of craftsmen, you have the clothing, कपड़े कैसे पहनते थे, you have the हेयर डू, बाल कैसे, दाढ़ी, मूछ, बाल, we have the ornaments, we have the games and sports। ये जो चीजें है, ये जिंदगी को बनाती है, इससे आपका आधा आंसर बनेगा सोसाइटी का। वी हैव फैशन ऑफ दैट एयर। आपने कभी सोचा था कि आप आंसर लिखोगे कि इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू नो अबाउट मेडिवल सोसाइटी, मेडिवल स्कल्पचर, वुड यू राइट इन द आंसर की भाई आई गेट टू नो, आई मतलब वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द फैशन ऑफ, वहां पे हाथ में पर्स होती है, हाई हिल सैंडल होता है, लिखो। हड़प्पा में आपको मिला है लिपस्टिक, काजल, वो क्यों नहीं लिखोगे आप? तो यू हैव टू ब्रिंग रोजमर्रा, सिलबट्टा इज किचन यूटेंसिल, इज दैट उसका एक पार्ट है। तो उसका मतलब सिलबट्टा इज एग्जाम्पल, but that example helps me create mental structure that whenever I want to write on society, it could be through sculpture or painting or whatever, I have to talk about this रोजमर्रा की जिंदगी। उससे आपका आंसर बनेगा यूनिक, जो लगभग बाकी कोई लिखेगा नहीं, और लिखेगा तो उसको छोटा सा एक लाइन लिख के छोड़ देगा, आपका आधा आंसर वहां से बनेगा। यू हैव टू प्रोक्योर रिलेवेंट फैक्ट्स टू जस्टिफाई द आंसर, ऑब्वियसली वो हम कर लेंगे, बट क्रिएट द टेम्पलेट्स इन योर माइंड। तो कमिंग बैक टू हड़प्पा, तो उसकी कहा, आई डोंट नो उस कहानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रो एंड थर्स्टी क्रो, थर्स्टी क्रो। हम मराठी में उसको कावळा एंड दगड बोलते हैं, बट एनीवे, कौवा एंड पत्थर, थर्स्टी क्रो। So you have that thing. Now you come to Vedic era. In Vedic era, you have lots of things again, but what we focus on is again change and continuity, C and C, from early to later, that you can glean through literature. And secondly, religion and its legacy. Upanishads form the basis of Indian philosophy. आप इंडिया में कोई भी धर्म में जाओ, you go into कोई भी philosophy, you will come back to the framework of terminology created by Upanishads। भले उसके साथ मानो या ना मानो, बुद्धा भी जो करता है, ही वुड से कि इन उपनिषद दीस टू थिंग्स आर राइट, आई विल एक्सेप्ट दैट, दिस फोर आर नॉट राइट, आई रिजेक्ट दैट। ये बुद्धा ने भी किया हुआ है। पॉइंट इज, आपका जो अखाड़ा है वो डिफाइन तो वहां से होता है जिस अखाड़ा में आप गेम खेलते हो। तो इट इज द फाउंडेशन ऑफ फिलोसफी। एनीवे, व्हेन यू कम टू महाजनपदा, यहाँ भी यू हैव फर्स्ट एम्पायर्स और फर्स्ट किंगडम्स रादर। हियर द फोकस इज लार्जली, क्या हुआ, चेंज एंड कंटिन्यूटी, चेंज एंड कंटिन्यूटी। मैं थोड़ा आलसी हूँ, किस्म का इंसान हूँ, तो चलता रहेगा वो। Now, in case of Mahajanpada, the main idea is religion and philosophy. So focus यहाँ भी religion and philosophy रहेगा. They won't ask you other things. I was expecting one question for last 2-3 years about
इंडिया बीइंग मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वो इतना डिबेट चल रहा है 2021 से, तो आई यूज्ड टू कवर इट। अब तो पूछा नहीं, अब डिबेट भी पुराना हो गया, तो मैं उस पर नहीं पढ़ाऊँगा और फिर पूछेगा यूपीएससी। ये होता है। बट एनीवे, महाजनपद। देन वी कम टू Mauryan era. Now, in Mauryan era, what we have interestingly is not only first All India empire that is there. We have the, or we can call it first Chakravarti empire. The idea of Chakravarti rule existed even before that, but it was realized for the first time in the Mauryan era. Chakravarti Kshetra being Indian subcontinent. But what we have is that once you create such Chakravarti state, you are not only a political state, you are a cultural state. You're shaping the culture of people very actively through patronage, through intervention in society and religion. So Mauryan state is a cultural state as well. इसमें यू हैव स्तूपा ब्यूटिफिकेशन से लेके पिलर खड़े करना तो है ही, एंड यू हैव अशोकन धम्मा एज वेल। अशोकन धम्मा जो है उसका आज में रिलेवेंस क्या है? इफ आई कैन गो टू द अदर मूर्ति, नारायण मूर्ति, तो नारायण मूर्ति ने एक जगह कहा भी बहुत पहले, वो डिस्कस सुधा मूर्ति ना अभी, तो नारायण मूर्ति, तो नारायण मूर्ति, यू नो ही स्टोरी, एट यंग एज ही यूज्ड टू बी अ कम्युनिस्ट इन फ्रांस। वो गए थे 60s में 70s में, कम्युनिस्ट थे पूरे वो, एकदम वो जमाना भी वो उस जमाने का दौर था। एंड वहाँ पे कुछ क्राइसिस हुआ, ही हैड टू कम बैक टू इंडिया वाया ट्रेन एंड बस फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। फ्लाइट से नहीं आए थे, तो आते आते ही रोम्ड अक्रॉस लॉट ऑफ प्लेसेस, ईस्ट यूरोप में भी गए, उन्होंने वहाँ पे गुर्बत देखी, एंड फिर उनका कहते डिसएन्चांटमेंट विद कम्युनिज्म हुआ कि भाई इससे तो गरीबी बढ़ रही है, दिक्कत हो रही है। बाय द टाइम ही रीच्ड इंडिया ही वाज बिलीवर इन कैपिटलिज्म। ही स्टार्टेड इन्फोसिस आल्सो, ही मेड इट ग्रेट कैपिटलिस्ट सक्सेस। इंडिया की ओपनिंग अप स्टोरी 91 की जो है, वो स्टोरी इन्फोसिस की स्टोरी है एक किस्म से। उनको किसी ने बाद में पूछा इन इंटरव्यू की, नाउ व्हाट डू यू बिलीव इन? You have been communist leftist sympathizer at young age. You have also been very successful capitalist in creating great MNC. What do you believe in now? उन्होंने कहा नाउ आई थिंक दोनों में गड़बड़ है। तो his idea was what we should have is compassionate capitalism. Compassionate capitalism. So I am just trying to rephrase that here. Ashokan Dhamma is a vision of compassionate state, and that ideal will never go away. तो अशोकन धम्मा का आज के रिलेवेंस क्या है? सिंपल है, it enshrines the idea of compassionate state forefront में. That is the vision of Indian Constitution also. So my point is that you can think of those cultural state concept. Then you also have huge patronage given to architecture, the royal architecture being recreated. हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद जो बीच वाले 1000 साल है, we do not have the royal architecture or massive architecture. Mahajanpada states may have existed for a long time, but if you ask me today to show by which is the palace of any Mahajanpada Raja, I don't have any palace. We have one दीवार, बिहार में कई एक दीवार है, वो कहते हुए जमाने की थी, but that's all we have. We don't have physical remnants surviving. So after the decline of Harappa, there is 1000 years of architectural black hole. Vedic region क्या है? Vedic region में तो कुछ they are pastoral people, semi pastoral, they don't have permanent structures anyway. कुछ पॉटरी वगैरह होंगे, कुछ हथियार वगैरह होंगे, ठीक है, दैट इज नॉट आर्किटेक्चर. सो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर री इमर्जेस आफ्टर गैप ऑफ 1000 ईयर्स सिंस डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, अब जाके मौर्य. सो आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस जो है, विजुअल आर्ट्स के क्वेश्चंस जो है, वो यहाँ से शुरू होते हैं आगे सिलेबस में. तो यू हैव री इमर्जेंस ऑफ monumental architecture after the gap of 1000 years. 1000 प्लस ईयर्स, रादर 1000 से भी ज्यादा, 1500 साल के बाद है. Then so you look at stupa, you have a look at sculptures, royal edicts, Ashokan capital. All of these things are great, no doubt, because the king is funding them. It is the royal ideology.
therefore it is uniform across the long region, vast region, सब ठीक है. But does it mean that everything is only royal? Don't you have anything from the folk? Non-royal, कुछ कुछ है, कुछ. You have वो stone discs. We have some terracotta sculptures, maybe of yaksha or maybe some other things. So we have to focus on जो आज के दिन में हम फोकस, हमारा एक्सेसिव ऑब्सेसिव बायस रहा है टू लुक एट ओनली रॉयल्टी इन मौर्यन एम्पायर. वी हैव टू करेक्ट दैट. सो जब आपको पूछेंगे मौर्यन एरा आर्किटेक्चर, मौर्यन एरा कल्चर, you make it a point to write last point. Excessive focus on Mauryan royal architecture has lent us ignorant of the contribution of common person also. और वो भी पाया जाता है. एक लाइन लिखो, उसको बोलते हैं आखिरी बॉल पे सहवाग का छक्का मारना. यही तो होता है. आखिरी बॉल पे आपको करना एक लाइन. डोंट एक्सप्लेन लॉट. एनीवे, you come next. You go to post Mauryan is a marvelous era. If you ask me, ये पोस्ट मॉडर्न चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ फाउंडेशन क्लास में, आई टेक अराउंड 3 to 4 लेक्चर्स ओनली फॉर दिस चैप्टर. 3 लेक्चर्स तो लग ही जाते हैं पोस्ट मॉडर्न में, इतनी कुछ चीजें. एक जमाने में ऐसे था कि वी यूज्ड टू थिंक दैट मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड. देयर इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड देयरफॉर इट इज सपोजेडली अ डार्क एज. तो पहली बात तो इज इट अ डार्क एज और नॉट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखो मैं ये I want to emphasize these themes a lot because these themes percolate into every dimension of the question of that era. When I talk of cultural state, it will percolate into Ashokan Dhamma. It will percolate into Ashoka's patronage to sculpture or architecture. It will percolate everywhere. Similarly, when I talk of post-modern era ka feature as dark age and then question mark, I know arguments from both the sides. It provides me a handy template. If I write about a question on stupa, I can start with, although historians earlier considered it dark age, it can be observed from the proliferating patronage to stupa architecture, it was a culturally very vibrant era. How does it sound as introduction? Perfect introduction है. तो हर एरा का अपना एक स्पेसिफिक चीज है, उसको पकड़ लो आप और उसको आपको बार बार यूज करना है. द सेम क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड अबाउट संगम एरा. द सेम क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड अबाउट rock cut caves. The same question could be asked about even Gandhar Murtikala. Gandhar sculpture, Gandhar Murtikala sculpture belong to same dark age. Is it a dark age? It is not a dark age. तो आपको एक बार पता चलेगा उसको बार बार कैसे यूज करना है. तो you have this debate of dark age. Secondly, you have lots of powers there. You have Shunga, you have Karnava. Karnava तो काम के है नहीं हमारे. We have Shunga, we have Satavahana, we have Sangam, we have Indo-Greeks, Shakas and Kushanas. अच्छा 4 एस हैं, ठीक है. मैं भी एक एस हूँ, निखिल सेठ. तो you have lots of political structures, powers and their contribution. We have to cover that also to some extent. But most important point of this era is visual arts. यहाँ पे you have stupa. Stupa started quite earlier, not in this era, but this is a golden age of stupas. यहाँ पे you have proliferation of caves. इन दोनों के लिए ये बहुत ही important है. And then also you have sculptures. We have other themes as well. For example, how these foreigners, Indo-Greeks, Shakas and Kushanas become Indianized. तो वो भी themes आते हैं थोड़े थोड़े. The cultural influence of foreigners on India and India on foreigners. दोनों तरफ से you have that. एक जैसे Indo-Greeks tried to conquer India. They tried to Hellenize India. बट किसी ने कहा है कि एक पुराना रोमन या लैटिन एक कोई या ग्रीक पता नहीं कौन सी भाषा, एक मुहावरा है ना, वेणी विडी विशी, मतलब he came, he saw, he conquered. तो किसने कहा ग्रीक्स केम, ग्रीक्स सॉ, इंडियंस कॉन्कर्ड. तो अल्टीमेटली ये हो गया, वहां पे ग्रीक्स आए, हमें जीत भी लिए कई सारा एरिया. दे इम्पोज देयर कल्चर, दे इम्पोज देयर लैंग्वेज, दे इम्पोज देयर गवर्नेंस. अल्टीमेटली दे गॉट इंडियनाइज्ड.
within next 300 years. So ये so Indianization of this foreigner. So is it a dark age? अगर आप ये कहते हो कि फॉरेनर्स आके डार्क एज हो रहा है, तो दीज फॉरेनर्स आर देमसेल्फ कल्चरली कॉन्कर्ड बाय इंडियंस. भले वो बुद्धिस्ट बने, जैन बने, हिंदू बने, फर्क नहीं पड़ता, इंडियन तो बन गए. ठीक है. तो देन यू कम टू गुप्ता एरा. द मेन ट्रोप ऑफ गुप्ता एरा इज golden age. Is it a golden age? We have to understand this debate properly. जैसे ये डार्क एज है कि नहीं है? It is not a dark age, it's the age of commerce, post Mauryan era. Similarly, गुप्ता एरा के बारे में हम पहले मानते थे गोल्डन एज है. इंडिया इज अगेन लार्जली यूनाइटेड. You have very enlightened despotic kings as great Gupta emperors who give huge patronage to culture. Your rise of Brahmanical religion once again. Then you have in every sphere of life, culturally, economically, socially, some kind of progress and progressiveness rather. You think of Ajanta paintings, best of the paintings, Gupta era. You think of best of the gold coins, Gupta coinage. You think of the pinnacle of science and tech, Mehrauli iron pillar, Gupta era. You think of the great Sanskrit poetry, Kalidas, Gupta era. You think of greatest urbanization that you can come to know from Kama Sutra, Gupta era. तो आपके spheres of life में जहां जहां जाओ, you will see Gupta era is pinnacle. So golden age. But was it really a golden age? Partly no. It was not widely shared. We have social, geographic, political, cultural limitations also. तो चलो गोल्डन एज नहीं है या है, वो डिबेट आपको देखना है. देन देर इज another debate that comes along with it. Is it a classical age? Is it a classical age or not? Now, this is also a very important debate. Because this idea of classicism क्या होता है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. If they ask you questions on Kalidas, on Ajanta paintings, they ask you question on beginning of temple architecture हो या science and tech, कुछ भी हो, अल्टीमेटली आप जो मुद्दे लिखोगे उसमें ना फैक्ट्स बड़े कम होंगे, याद ही नहीं होंगे आपको, कैसे रटोगे आप? You will write typical 5-6 points that we know from this template. Is it a classical? Yes, it is. It may or may not be golden age, but it is a classical age. So what is classicism? ये समझना बड़ा जरूरी है. एंड वंस यू गेट दोस 5 पॉइंट्स, चिपकाना है सब जगह. ठीक है. सो यू विल गेट टू नो दैट. एंड देन यू हैव अदर थिंग्स आल्सो, स्पेसिफिक थिंग्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी फोकस ऑन आईकेएस, जो आज के दिन में बहुत डिबेट तो नहीं कहूँगा, बट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट दैट अ लॉट. इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, राइट? सो ऑल्दो इट इज देयर इन एंटायर एंशिएंट इंडिया, दिस इज अ गुड पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन फॉर अस टू स्टडी आईकेएस. मतलब हम जब देखेंगे साइंस एंड टेक, यहाँ देख लेंगे. Then you come to the post Gupta era. तो पोस्ट गुप्ता एरा मतलब कौन सा है? फ्रॉम 550 to 750. That's all. It is not early medieval. It is before early medieval. In North India, यहाँ पे आपके पास हर्ष, सम्राट हर्ष, जिसको एक जमाने में महान मानते थे, अब नहीं मानते इतना. राइट? हाँ. अच्छा, he was considered the last great king of North India. It is not true. After him, lots of kings have come and united North India a lot. So let us not go in that debate. But Harsh was considered a very important king earlier. He is still important, but he is one amongst many. इसका नाम हर्ष है क्या यहाँ? अच्छा, एक आपको सुनाता हूँ कहानी, आप सुनो. You know, Samrat Harsh tried to conquer South India and Deccan, and he was defeated at the banks of Narmada. Pulakeshin the second, Chalukya Raj. Pulakeshin second and Harsh are contemporary. अब हर्ष को ग्रेट क्यों मानते थे पता है? उसके दो दरबारी भाट थे. मतलब भाट मतलब जो गुणगान गाता है. We have one, his name is Banabhatta, who praises great Prashasti of Raja Harsh, and then we have other person, he's UN San. Both of them are Darbari Chatukar to some extent. Some extent, right? I don't mean negatively, because they are courtiers.
उनकी जीवनी चल रही है, राजा जो सोने के सिक्के देगा वहाँ पे। उनके तो उनका इंटरेस्ट है, उनका बायस है कि भाई उसके लिए अच्छा लिखो, सीधी बात है। तो मैं नहीं बोल रहा झूठ लिखा है, और उन्होंने सिर्फ अच्छा लिखा, क्रिटिकल नहीं लिखा। तो critical aspects are missing from these two narratives. Does it mean that Harsha had no negative or no limitation? He would have had, but यहाँ लिखे नहीं गए. So we come to know that he was defeated not from these two people. We come to know that he was defeated from an inscription in Karnataka in Aihole. रवि कीर्ति का जो है, जिसको इन लोगों ने कन्वीनियंटली लिखा नहीं, बाईपास कर दिया, है ना? So anyway, the point is, if you read that inscription, it's a long poem in Sanskrit by रवि कीर्ति, और उसमें एक लाइन आती है, भयभीत विगलो हर्ष ये न चाकारी हर्षा। मीन्स हर्ष को हमने ऐसे हराया कि भय के मारे उसका हर्ष चला गया। ठीक है। एनीवे, तो in North India, you have Harsha, you have Arab invasion of Sindh, and then cultural exchange that happened in both the directions. Arabs on India, India on Arabs. But the problem with North India in the post-Gupta era, it is severely politically fragmented. There is no cultural progress as such. The main ये जो स्टोरी, ये जो मूवी है, इस मूवी का जो हीरो है वो साउथ में आता है। द वाइटलिटी ऑफ इंडिया, द कल्चरल रिवाइवलिज्म कहो या कल्चरल प्रॉस्पेरिटी कहो, इट इज साउथ ऑफ नर्मदा, इट चालुक्य एंड पल्लवा. So the main feature of the post-Gupta era is center of gravity of Indian civilization is shifted south of Narmada in Chalukya and Pallava era. ये वही जमाना है जहाँ पर यू हैव द बिगिनिंग ऑफ वेसरा एंड द्रविड़ आर्किटेक्चर ऑल्सो, इसी जमाने में होता है. ये वही ज़माना है जब डीप साउथ में यू हैव भक्ति पोएट्स, तमिल भक्ति शुरू हो रही है, अलवर्स एंड डाइनर्स. ये वही ज़माना है जब शंकराचार्य भी है इन द 8th सेंचुरी, जस्ट इसके एंड में आते आते 720s के आसपास. सो नॉर्थ इंडिया में यू हैव सम काइंड ऑफ डिक्लाइन apparently, एंड साउथ इंडिया यू हैव सम काइंड ऑफ अपसर्ज ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर वगैरह हो गए. सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोस्ट गुप्ता एरा. तो यहाँ पे सवाल कि इज इट ट्रू, अगर कल सवाल पूछे भी चालुक्यन आर्किटेक्चर, द बिगिनिंग ऑफ वेसर आर्किटेक्चर, बिगिनिंग ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर, आप शुरू करोगे. द्रविडियन आर्किटेक्चर began in post Gupta era when North India was undergoing one of its phases of decline and South was on the ascendant. आपने इसका सोचा भी नहीं होगा कि in case of Dravidian architecture you can bring that cultural context, है ना? तो आई वांट टू ब्रिंग दोस मेन फीचर्स ऑफ एवरी एरा जिसको आप सब जगह लगाओगे उठा उठा के, उनको आपको इंटरनलाइज करना है. Similarly, you go to early medieval. Hmm. In early medieval, you have Mahinda Varman, you have Pulkeशिन सेकंड, ये तो लोग हैं. नरसिंह वर्मन. एक तो किस्सा ऐसा है, मैं कहानी आपके रात के 9-10 बज जाएंगे यहीं पे. इन पल्लवा डायनेस्टी देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट दे डिड नॉट हैव एन इशू. उनका बेटा नहीं था. एक एक जमाने में एक कड़ी टूट रही थी, अगला राजा नहीं था. तो हुआ ये कि ओल्ड किंग डाइड एंड दे हैड नो पर्सन टू टेक अप द मैंटल. तो ओनली सॉल्यूशन वाज दैट उस फैमिली की दूर वाली ब्रांच थी, उस ब्रांच में जो लोग थे वो कहते अब हमें मुकुट चाहिए, नाउ वी वांट टू बिकम किंग्स. बट दैट ब्रांच वाज नॉट गुड ब्रांच, दे वर नॉट कंसिडर्ड गुड पीपल. वो लोग परेशान करने वाले लोग थे. तो नोबडी इन द कोर्ट वांटेड somebody from that branch of family to become the king. तो किया क्या जाए? तो ऑल दिस मंत्री सेट टुगेदर कि व्हाट टू डू. दे उनका काफी खलबत हुआ, मसलत हुई, सब कुछ हुआ. अंत में दे डिसाइडेड कि भाई कुछ पीढ़ियां पहले हमारे फैमिली से एक लड़की शादी में ब्याह के कहीं और दी थी. कहाँ दी थी? वियतनाम में. अब वियतनाम में उनकी 2-4 पीढ़ी हो गई है, तो वहाँ के जो बेटे होंगे वो भी हमारे पल्लव वंशज ही है. लेट अस सेंड अ मिशन देयर. सो दे सेंट अ मिशन टू वियतनाम. एंड वियतनाम में वहाँ पे उस पीढ़ी में वहाँ पे 4 राजा, मतलब 4 बेटे थे नेक्स्ट जनरेशन में. द सबसे एल्डेस्ट ने कहा तो मैं यहाँ का राजा बनने, आई एम गोइंग टू बी अ किंग हियर, मैं क्यों आऊँ वहाँ पे, इतने तो इंडिया राज करने के लिए. पहले ने मना किया, सेकंड थर्ड, जो सबसे छोटा था उसको गारंटी थी वो तो राजा बनने वाला है नहीं वहाँ पे, मैं आ जाता हूँ. तो उसको लेके यहाँ पे आके पल्लव राजा बना दिया. सो पल्लवा कोर्ट इंपोर्टेड अ किंग फ्रॉम वियतनाम.
आप समझो। ओनली टू एंश्योर कि भाई, बट देखो मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ, द स्टोरी का इंपॉर्टेंट, द क्लोज नेटवर्क ऑफ इंडियन ओशन ट्रेड फ्रॉम दिल्ली, वी डोंट गेट टू अंडरस्टैंड दैट। चेन्नई में रहोगे ना तो दिल्ली दूर है, सिंगापुर नजदीक है। आई एम नॉट कल्चरली भी, तो लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट हो, फूड इम्पैक्ट हो, वेदर का इम्पैक्ट हो, सिंगापुर उनके बगल में है, दिल्ली बड़ी दूर। इफ यू फ्रॉम मुंबई तो आपके लिए अरबस्तान बहुत नजदीक है। खैर, तो ये अब देखो आप ढूंढो ना। नहीं, किंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वॉज द फोर्थ किंग दैट वी स्टडी इन आर्किटेक्चर, लास्ट फेज, द वन हु बिल्ट कैलाश नाथरा टेम्पल। अब जाके ढूंढो। यहाँ पे कोई हिस्टोरियल का है क्या? एक, मैं तो आपसे मिला हूँ पहले, और कोई है? हम्म? ना। कंटिन्यू करो। अर्ली मेडिवल और फीचर्स ऑफ अर्ली अर्ली मिडिल में सबसे बड़ा डिबेट है, इज इट अ फ्यूडल एरा और नॉट। नाउ एज पर द ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी विच वी कैन, अब देखो यूपीएससी गिव्स अस मिक्स्ड सिग्नल। समटाइम्स दे डिबेट इज इट फ्यूडल एरा और नॉट, समटाइम्स दे प्रिज्यूम कि ये है, बताओ फीचर्स। तो हमें फॉर जनरल स्टडीज वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, we do not need that debate, but what we know is there is some decline of cities, at least in some part of India, decline of coinage, decline of trade. We have the division of politics altogether. तो आप दोबारा उस साइकिल में चले जाते हो जहां पे फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, रीजनलाइजेशन हो चुका है। तो उसका इम्पैक्ट क्या है? हाउ दिस पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, इनवर्ड लुकिंग अप्रोच, रूरलाइजेशन, focus on agriculture more than on trade, etc., regionalization, how all these things have impacted culture. जैसे कि लुक एट द आर्किटेक्चर, वी हैव रीजनल टेम्पल का अलग अलग आर्किटेक्चर। लुक एट द लैंग्वेजेस, अब तक क्या चल रहा था, संस्कृत पाली प्राकृत। नाउ वी हैव द बिगिनिंग, द इमरजेंस ऑफ इंडियन रीजनल वर्नाकुलर्स, हिंदी हो, बंगाली हो, मराठी हो, तमिल इज वेरी ओल्ड। बाकी सारी भाषा जनरली इन 500 साल में आती है, शुरू होती है। तमिल इज वेरी ओल्ड, कन्नड़ा स्टार्टेड इन दिस एरा, बट मोस्ट ऑफ अदर लैंग्वेज इन इंडिया, बंगाली, मराठी, हिंदी स्टार्ट इन दिस एरा। व्हाई? सो वर्नाकुलराइजेशन ऑफ, ये सब चीजें जो है, ये वही जमाना है जहाँ पे बनती है। यहीं पे यू हैव लॉट्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यहीं पे यू हैव इन इन ईस्ट इंडिया यू हैव पाल, इन डेक्कन यू हैव राष्ट्रकूट, इन नॉर्थ एंड वेस्ट यू हैव राजपूत्स, इन साउथ यू हैव चोल। क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन पाला, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन चोला। राजपूत एंड राष्ट्रकूटा आज तक पूछा नहीं है, पूछ सकते। वी शुड बी रेडी फॉर दोस फोर्स। यहीं पे यू हैव ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम टेम्पल वगैरह, नालंदा। So this will become our entry point to study religious, the educational history of India. यहीं पे you also have impact of India on Southeast Asia। जो recent किताब आई है विलियम डार्लिंपल की, द गोल्डन एज, गोल्डन रोड ना, गोल्डन रोड सॉरी, तो वो काफी डिबेटेबल बन गई है। मेनी हिस्टोरियंस डू नॉट लाइक दैट बुक एनी मोर। काफी, चलो खैर वो अपने काम की, नहीं उसके लिए नहीं, अलग चीज है। बट द पॉइंट है कि दैट बुक विल गिव अस लॉट ऑफ गुड डेटा टू राइट आंसर हियर इन पोस्ट गुप्ता एरा एंड अर्ली मेडिवल एरा। Then you come to the medieval time. In medieval, you have Delhi Sultanate plus Mughal Empire in North India, Delhi and Mughal. So यहाँ पे you simple have typical points. What was the impact of Islam on India? This thing is important to understand. Impact of Islam on India. हाँ, this is true that Islam came to India even before Sultanate. It came in South India as traders' religion, but it was just in pockets, not that relevant or important as such. The real impact you see in North India when it comes as the region of the rulers, not of traders, but of rulers. तब impact ज़्यादा होता है. You get to see what is the impact. Ultimately,
इसमें वी हैव टू बी, इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं, देयर इज़ बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड आल्सो सिंक्रोनाइज़ेशन और सिंक्रेटिज़्म रादर। कॉन्फ्लिक्ट भी है, कोऑपरेशन भी, दोनों हुआ है। वी कैन नॉट फोकस ऑन वन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, दोनों हुआ है। इट्स मैटर ऑफ फैक्ट। अल्टीमेटली फ्रॉम दैट इमर्ज समथिंग कॉल्ड एज़ कंपोजिट कल्चर। नाउ ऑन सोशल मीडिया यू विल हैव लॉट ऑफ पीपल हू विल से कि ऐसे कुछ था नहीं। People, there are some people who will believe that there was no Ganga Jamuni Tehzeeb. But let us keep that debate outside of the scope of exam. In the exam, we can be very right about it कि भाई there was gradual. If शुरू में हो सकता है कुछ लोग नहीं चाहते हो इमर्ज होना, मारामारी होती रही, जो कुछ होता रहा, बट अल्टीमेटली चाहे अनचाहे, परफोर्स that became the reality. I'll give you example. Have you ate gulab jamun? Do you know it is Indo-Islamic? गुलाब इस्लामिक, जामुन इंडियन है। क्या उसको आप सेपरेट कर सकते हो? तुम गुलाब खाओ, जामुन मत खाओ। इट इज़ इम्पॉसिबल। जैसे गंगा यमुना साथ में आती है और बह के बनारस जाती है, बनारस में खड़े रह के आप कहते हो तो ये बूँद गंगा की है, ये बूँद यमुना की, इनको अलग करो। आप नहीं कर सकते। थिंक ऑफ हिंदी उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज में कैन यू से कि भई अब देश का बँटवारा हो चुका है पार्टीशन में, तो व्हर बाबर रखो, नाउ नमक देते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ कंपोज़िट कल्चर। आप चाहते हो, नहीं चाहते हो, दैट डज़न्ट मैटर। ये होता है कि फैक्ट ऑफ द मैटर है। So how did this composite culture emerge? How do you see that in Indo-Islamic architecture? How do you see that in paintings? How do you see that music? हिंदुस्तान में क्लासिकल म्यूजिक क्या है? म्यूजिक पहले एक ही था। इन इंडिया बिफोर 13th सेंचुरी वी हैड ओनली वन क्लासिकल म्यूजिक, जैसे दुनिया में हर जगह होता है। आफ्टर 13th सेंचुरी इट स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस, कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक म्यूजिक इन नॉर्थ इंडिया। नाउ इंडिया इज द ओनली कंट्री इन एंटायर यूनिवर्स टुडे which has got two classical music systems. यूरोप में यूरोपियन क्लासिकल म्यूजिक एक ही है, हमारे पास दो है, हिंदुस्तानी, कर्नाटिक। अब हिंदुस्तानी क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडो एंड इस्लामिक। यू कैनॉट गो बैक कि भाई तुम छोटा अंतरा मान का बड़ा अंतरा गाओ, ऐसे हो ही नहीं सकता, राइट? So you have composite culture, so you have to understand the compositeness of culture so as to write the answers. मैं इसलिए नहीं बता रहा कि फिलोसॉफी है। पॉइंट है कि इफ यू हैव क्वेश्चन ऑन ताजमहल, if you may have question on the evolution of the dome, evolution of tomb architecture, etc., you have to bring these elements in। ठीक है? तो उसमें स्कल्पचर हो सकता है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर तो नहीं है वैसे, आर्किटेक्चर है, पेंटिंग है यहाँ पे। देन यू हैव द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट पीपल ऑलरेडी आस्क्ड अर्लियर। एंड देन यू हैव ऑल पेंटिंग, म्यूजिक वगैरह, पार्ट ऑफ कंपोजिट कल्चर ओनली। यू हैव टू मोर टॉपिक्स आफ्टर दिस। एक है भक्ति एंड सूफी। भक्तिज्म इमर्ज्ड quite early, it emerged in South India in 7th century, Bhakti movement. So it started in Tamil Nadu and उत्तर में आते-आते उसको 1000 साल लग गए। तो इन पद्म पुराण, एक पद्म पुराण में लिखा हुआ है, उत्पन्नातुर्णे भक्ति कर्नाटम वृद्धिम आगताः तत् किंचित महाराष्ट्रे जीर्णताम गुजराम गताः। या जैसे हिंदी में एक कहावत भी है कि भक्ति द्रविड़ उपजो लायो रामानंद प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। भक्ति में उनका उत्पन्नता जो ओरिजिन है तमिलनाडु में। इट टुक 1000 years फॉर इट टू रीच नॉर्थ इंडिया। धीरे 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 स्टेजेस में आई एंड देन स्प्रेड एवरीवेयर। तो भक्ति मूवमेंट का जो इवोल्यूशन है, सेकेंडली वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम इवोल्यूशन आवर इंटरेस्ट इज इन सोशल क्रिटिसिज्म। मतलब व्हाट डज इट हैव टू से अबाउट कास्ट सिस्टम, अबाउट जेंडर रिलेशनशिप, पैट्रियार्की एटसेट्रा। इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ सोशल रेडिकलिज्म देयर? जैसे बुद्धा, वैसे भक्ति। नाउ इन बोथ केसेस ऑफ बुद्धा एंड भक्ति मूवमेंट, दोनों केसेस में यू विल सी दैट देयर इज लिमिटेशन। एक जमाना था 1960s में, वी यूज्ड टू ओपनली से कि भाई बुद्धा वाज सोशल रिफॉर्मर, बुद्धा वाज सोशल रेडिकल, जैसे कि वो कोई चे गवेरा हो। बुद्धा इज नॉट चे गवेरा। हाँ, हिज फिलोसॉफी हैज सम रोल, डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव प्रोग्रेसिव रोल अबाउट लिबरलाइजिंग सोसाइटी, नो डाउट। बट टू एक्सपेक्ट हिम टू बी कार्ल मार्क्स एंड चे गवेरा इज नॉट राइट। हर आदमी अपने जमाने का बंदी होता है। सिमिलरली भक्ति संत, कबीर हो, नानक हो, इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। बट स्टिल यू विल सी भक्ति मूवमेंट के अपने एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट लिमिट इट्स इफेक्टिवनेस।
Same thing with Sufism. They would have some positive role, but that role is limited. आप मैं I'll tell you explain, मैं सबको काउंटर पॉइंट दूंगा, समझ में आता है. जब कबीर नानक इंडिया में है, उस समय यूरोप में क्या चल रहा है? मार्टिन लूथर किंग. तो कंपेयर मार्टिन लूथर विथ कबीर एंड नानक. मार्टिन लूथर किंग्स का जो पूरा जो क्रिटिसिज्म एंटीफाई थीसिस वगैरह जो है, उसका जो परिणाम निकलता है, अल्टीमेटली दे क्रिएट मॉडर्न कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, कैपिटलिज्म. यहाँ पे वो नहीं हो पाया ना, कुछ लिमिटेशंस तो रहे हमारे. मतलब डिस्पाइट लॉट ऑफ attempts to change the old system altogether. So when you talk of social criticism, यूपीएससी ने सवाल पूछा है आपने, आप देखो एक सवाल, एक तो कागज देना मुझे. There is one question. Sufis and medieval mystic saints failed to modify either the religious ideas or practices or the outward structure of Hindu-Muslim societies to any appreciable extent. Comment. क्या भक्ति संतों का सूफी का ये फेल्यूर है कि अभी भी कास्ट सिस्टम जिंदा है? ये बहुत गहन सवाल है. इट्स नॉट दैट इजी क्वेश्चन टू आंसर इन जीएस इन 7 minutes, right? So it requires some prior thinking. So first point is social aspect, both positive and negative, and second is cultural aspect. ये पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. Forget about caste system का criticism वगैरह. Cultural, the contribution of bhakti saints to literature, to poetry, of Sufi saints to literature. आपको not only literature, dance, drama, music, everything. The culture of India today is the creation of culture of bhakti movement. नारद पुराण में लिखा हुआ है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद. कि नाहम विष्णु कहते हैं नारद को, मैं वैकुंठ में नहीं रहता और किसी योगी के हृदय में भी नहीं रहता. जहाँ मेरा भक्त गाना गाता है वहां उसकी मैं राह देखता हूँ. तो आई एम गोइंग टू सपोर्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा. इफ यू थिंक ऑफ ऑल द क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, कहाँ से आते? भक्ति मूवमेंट से आते. यू थिंक ऑफ ऑल द पेंटिंग्स ऑफ रागमाला, भक्ति मूवमेंट. यू थिंक ऑफ ऑल टेम्पल आर्किटेक्ट. विजुअल आर्ट्स तो ठीक है, देखो बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस विजुअल आर्ट्स, भक्ति मूवमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस विजुअल आर्ट्स. यहाँ पे स्तूप बने, केव बने, यहाँ मंदिर बने. बट बुद्धिज्म में जो नहीं है, भक्ति मूवमेंट जो है, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ रसाज. In Buddhism, you have negation of the life. In Bhakti, you have acceptance of the life. आपको समाज का त्याग करके भिक्षु नहीं बनना है. भक्ति मूवमेंट लगभग सारे, इफ नॉट ऑल, लगभग सारे शादी करके गृहस्थी में थे. They were part of society. They embraced the society. And वहां से जो रस निकलता है, नवरस अलग अलग, तो कविता है, डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है. एंटायर क्लासिकल कल्चर ऑफ इंडिया इज क्रिएशन ऑफ भक्ति मूवमेंट. तो आपको इम्पैक्ट की जब बात करोगे, यू हैव टू थिंक ऑफ दोस थिंग्स. And then we have last point, Vijayanagar Empire. In case of Vijayanagar also, they may ask some questions like the contribution of Vijayanagar Empire to art and culture, or the patronage by Krishna Deva Raya, KDR, वो तो हम देखते ही हैं. तो factual questions. Conceptually, यहाँ पे you have three things. Firstly, it was not only a cultural state, it was specifically a Renaissance state. Secondly, it was a melting pot of entire South India. And thirdly, it was Islamicate. Not Islamic, but Islamicate. एक technical term है माइकल हॉडसन की, Islamicate. We have to study. So whenever you have question on temple architecture of Vijayanagara, or the foreign travelers coming to Hampi and giving some comments, or anything, Krishna Deva Raya, आपके पास facts कम है, कोई दिक्कत नहीं, 2 facts 3 facts दे दो, I will still consider the whole answer based on these 3 perspectives. ये आपके structural viewpoints. So what I want to say is that every era has got, थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा ये, has got certain important things. In case of Mahajanapada, in case of Mauryan, first cultural state, post-Mauryan, dark age, Gupta era, golden age, classical age, post-Gupta, South India, early medieval, feudal age of decline है कि नहीं है, Sultanate and Mughal, is it composite culture, go to, तो आपको विजयनगर, it is Islamicate culture, etc. तो ये आपके पॉइंट्स है रेफरेंस के, इसके इर्द गिर्द आपके आंसर बनेंगे, और बाकी फैक्ट्स जो प्री के लिए आपने पढ़े होंगे.
इज़ इट क्लियर? ठीक है।